The topic is jaw relations. Okay, discrepancies in occlusion of a denture can be clearly detected from what? They can be clearly detected from the remounting procedures of the denture. The denture should be remounted on the articulator with the new interocclusal records of centric and eccentric relations, and then the occlusal is corrected by selective grinding. Okay, next, the function of compensating curves is what? Function of compensating curves, it is to provide the balanced occlusion in complete dentures when the mandible is protruded. ठीक है, जब मैंडिबल को हम प्रोट्रूड करते हैं तो बैलेंस ऑक्लूजन दोनों साइड पे प्रोवाइड करना कंपनसेटिंग कर्व्स का काम रहता है. कंपनसेटिंग कर्व्स आर द आर्टिफिशियल कर्व्स दैट आर नोन एंड इंट्रोड्यूस्ड टू dentures in order to facilitate the production of better occlusion. Okay, दोनों eccentric और centric relations. Next, palatal cusp of upper posterior teeth in the complete denture and posterior teeth in the patient should fall on what? जो palatal cusp होता है of the upper posterior teeth in CD, ठीक है, that should fall on the crest of mandibular ridge. Okay, in normal occlusion, the palatal cusp of the maxillary posterior teeth shall occlude with the central fossa of the lower teeth, which in turn would be in line with the crest of mandibular ridge. Okay, next, buccolingual width of posterior teeth should be how much? The buccolingual width of the posterior teeth, they should be less than the width of natural teeth they are replacing. ठीक है, उनकी विड्थ जो है वो कम होनी चाहिए फ्रॉम द नेचुरल टीथ दे आर रिप्लेसिंग. क्यों? क्योंकि हमारी एल्वियोलर बोन अंदर की तरफ रिजॉल्व हो गई होती है, गोल हो चुकी होती है. ठीक है, आर्टिफिशियल पोस्टीरियर टीथ दैट आर नैरो इन बक्कोलिंगुअल डायरेक्शन एनहांसेस द डेवलपमेंट ऑफ करेक्ट from polished surfaces of denture and also reduces the amount of stress on the supporting tissues. Okay, next, transfer of hinge operating axis is compulsory in what? Transfer of hinge opening or operating axis is compulsory in planning to change the vertical dimensions. हिंज एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पास करती है दोनों कंडाइल से, ये हमने पहले बात की है. व्हेन द मैंडिबल रोटेट्स इन द सैजिटल प्लेन, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच कोइंसाइड्स विद द सेंट्रिक रिलेशन पोजीशन ऑफ द मैंडिबल इज कॉल्ड एज हिंज एक्सिस और ट्रू हिंज एक्सिस. पेशेंट्स हिंज एक्सिस कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द आर्टिकुलेटर इनटू सेमी एडजस्टेबल या एडजस्टेबल, फुली एडजस्टेबल, किसी भी आर्टिकुलेटर में आप ट्रांसफर कर सकते हैं इसको. द फेस बोर्ड ट्रांसफर इज एसेंशियल when the cusp teeth are used, and also change in the vertical dimensions is checked. Arbitrary mounting of the maxillary cast without a facebore transfer can introduce errors in the occlusion of the prosthesis. So transferring the hinge axis is must when we are planning for full mouth rehabilitation in the patients who require increase in the vertical dimension. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिकॉर्ड मैंडिबुलर मूवमेंट्स? कौन सी चीज़ें मैंडिबुलर मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं करती? चार ऑप्शन दिए आपको, अल्ट्रासाउंड, एक्सेलरोमीटर, आर्कस डिग्मा, फेसबो. नॉट रिकॉर्ड मैंडिबुलर मूवमेंट्स इज फेसबो. ठीक है, फेसबो रिकॉर्ड करता है रिलेशनशिप ऑफ द जॉज टू द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड नॉट द ओपनिंग एक्सिस ऑफ द मैंडिबुलर मूवमेंट्स. Okay, next, which of the following is true statement about the denture teeth and occlusion? The true statement about denture teeth and occlusion is that heavy load over second molar tilts or shifts the denture. अगर एक साइड पे आपके सेकंड मोलर के ऊपर हैवी लोड पड़ेगा तो दूसरी साइड से डेंचर जो है वो उठ जाएगा. Okay, in dentulus, the second molar is the favored area for heavy mastication for better leverage and provide heavy masticatory load over second molar and can cause tilt or shift of the denture base. Okay, next, a U-shaped slightly convex metal plate is positioned over a natural teeth to record the occlusal discrepancies in which method of single CD treatment? ठीक है, answer is Urekastase technique. In Urekastase technique, a U-shaped slightly convex metal plate is positioned over the natural teeth and the occlusal discrepancies, that is high points, they are recorded. These discrepancies are reduced in the diagnostic cast. The reduced cast is used as a guide to reduce the natural teeth. ठीक है, reduced cast जो है उसको गाइड किया जाता है कि हमें जो नेचुरल टीथ है उसके हिसाब से हमें जो एक्रेलिक वाले दांत है उनको कितना के रिड्यूस करना है. नेक्स्ट, विच occlusal टेस्ट इंडिकेटर इज नॉट अफेक्टेड बाय सलाइवा? टी स्कैन जो है वो इफेक्ट नहीं होता बाय सलाइवा. चार ऑप्शन दिए, स्ट्रिकुलेटिंग सिल्क, GHM टेस्ट फॉइल, कोल्टीन प्रेशर स्पॉट इंडिकेटर और टी स्कैन. टी स्कैन ऑक्लूजल सिस्टम एनालिसिस सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का है.
that can record and give at a given contact sequence in 0.01 seconds increment, and it is not affected by saliva. Next, following the jaw deformation during the mandibular fracture when postulated, it will show what? It will show symphyseal bending, it will show dorsoventral shear, and it will show corporal rotation. Okay, but it will not show angle shear. Okay, 4 patterns of jaw deformation during mandibular fracture were postulated: symphyseal bending, dorsoventral shear, anterior posterior shear, and corporal rotation. ये 4 फैक्टर दिखाई देते हैं. We'll talk about teeth. The width of central incisor as compared to bizygomatic width. सेंट्रल इंसाइजर की बायजाइगोमेटिक विड्थ से कंपैरिजन में कितनी विड्थ होती है? आंसर इज 1/16 विड्थ होती है. ठीक है, बायजाइगोमेटिक विड्थ जो होगी वो 1/16 आएगी. अगर हम मीजियोडिस्टल की बात करें ऑफ द अपर एंटीरियर टीथ तो वो 1:3.3 आती है फॉर द एंटीरियर टीथ. ठीक है, बायजाइगोमेटिक विड्थ की बात कर रहे हैं. सेंट्रल इंसाइजर नहीं, सारे एंटीरियर टीथ को कंबाइन लेके चल रहे हैं, दैट इज 1/3.3. फिर आती है क्रेनियल सर्कमफ्रेंस की बात. क्रेनियल सर्कमफ्रेंस अगर पूरा नापे तो उसका जो है 1/10 हमारा मीजियोडिस्टल विड्थ होती है ऑफ द अपर एंटीरियर टीथ. ओके, फिर आता है डिस्टेंस बिटवीन द हेयर लाइन एंड द चिन. इसमें 1/16 हिस्सा जो होता है दैट विल बी द लेंथ ऑफ द एंटीरियर सेंट्रल इंसाइजर. ओके, नेक्स्ट द पेशेंट हु वियर्स complete denture is having trouble in pronouncing the letter T. T नहीं pronounce कर पा रहा है. क्यों? It is due to the incorrect positions of maxillary incisors. ठीक है, alveolar sounds जैसे कि S, N, D, T, Z are produced by contact of tip of the tongue with the anterior most part of the palate or the lingual side of the anterior teeth. If the teeth are too far anteriorly, the D will sound like T. अगर टीच होंगे वो बहुत दूर होंगे एंटीरियरली तो डी बोलेगा तो टी की तरह सुनाई देगा. ठीक है, इफ द टीथ आर टू फार लिंगुअली, अगर लिंगुअली बहुत ज़्यादा दांत कर दिए आपने प्लेसमेंट में, टीथ प्लेसमेंट में, देन टी विल साउंड लाइक डी. उल्टा हो जाता है. अगर दांत आगे चले गए हैं बहुत ज़्यादा तो टी जो है वो जो डी है वो टी की तरह सुनाई देगा. अगर दांत पीछे आ गए हैं तो आपका जो टी है वो डी की तरह सुनाई देगा. ठीक है, मतलब पीछे आएगा तो डी सुनाई देगा आपको. ठीक है, नेक्स्ट पोर्सलेन डेंचर टीथ हैव व्हाट? पोर्सलेन डेंचर टीथ दे हैव हायर अब्रेजन रेजिस्टेंस दैन द गोल्ड. Okay, gold or silver alloy restorations wear more rapidly than the tooth enamel when opposed with the porcelain denture teeth. Okay, next, the maxillary teeth, if placed too far anteriorly and superiorly in the complete denture, it results in faulty pronunciation of what? अभी हमने बात की कौन कौन से वर्ड्स, F और V जो है वो नहीं बोल पाएगा. अगर मैक्सिलरी टीथ को हमने टू फार एंटीरियरली कर दिया है या फिर टू फार सुपीरियरली कर दिया है, बहुत ऊपर ले गए या फिर बहुत आगे को ले गए. ठीक है, तो F और V नहीं बोल पाएगा क्योंकि दांत जो है वो नीचे वाले होंठों के साथ मिल ही नहीं पाएंगे. ओके, नाउ F and V pronunciation is determined by anterior superior position of the anterior maxillary teeth. Okay, in Parkinsonism patient teeth arrangement is what? Parkinsonism में patient teeth arrangement जो होती है वो नॉन एनाटॉमिक होती है. Okay, Parkinson's disease, it's an idiopathic disorder of the central nervous system characterized by resting tumors, muscle rigidity, slow and decreased movements. Oral rehabilitation of these patients requires special care, especially in those cases where the patient's socio-economic status is not good. Patient cannot come to several times for fabrication of complete denture. इसलिए आप non anatomical teeth इसमें use करते हो. They will lead to better settling of the dentures than the other teeth. Next, movement of a denture base was the least in patient with poor ridges when what? बहुत ज़्यादा पुअर ridges है पेशेंट के अंदर, इमेजिन करो जस्ट. ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ द डेंचर बेस हमें प्रिवेंट करवाना है. ओके, सो वी विल गिव 0 डिग्री टीथ यूज़ करेंगे हम वहाँ पे. ठीक है, cuspless teeth also called as non-anatomical teeth or monoplane teeth are used in these cases. In these cases with highly resorbable ridge, the cuspless teeth are preferred as they do not get locked and displace the dentures during lateral movements. देखो बैलेंस ऑक्लूजन से भी ज़्यादा हम cuspless टान देंगे. क्योंकि अगर दांत एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो गए तो वो जब भी मूवमेंट करेगा तो मैग्जिला के साथ या तो मैंडिबल उठ जाएगा या मैंडिबल के साथ मैग्जिला लगा जाएगा. तो वो चीज़ हमने प्रिवेंट करनी है यहाँ पे. Okay, so we are giving cuspless teeth in these patients with the poor dental ridges. Okay, now during function the monoplane teeth they eliminate the inclined plane forces which create displacement of the denture base. जो भी मैंने बात की वही बता रहा है. ठीक है, इसीलिए हम 0 डिग्री टीथ को यूज करते हैं. 0 डिग्री टीथ आर नोन एज cuspless teeth. Next, for highly visible gingiva it is advisable to select what?
देखो, अगर हाईली विजिबल जिंजाइवा है तो आपको या तो वीडियो चेंज करना पड़ेगा या वीडीआर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उतना चेंज कर पड़ेगा जितना फिजियोलॉजिकल लिमिट्स है, फिर भी रहता है. सो इफ द पेशेंट प्रेफर्स फॉर हाई विजिबल जिंजाइवा, तो उसको पहले से आदत है, देन सिलेक्ट स्क्वायर टीथ विद लॉन्ग पॉइंट रादर देन हाईली टेपर्ड टीथ. लॉन्ग पॉइंटेड टीथ के साथ जो टीथ होंगे वो सिलेक्ट करने रादर देन हाईली टेपर्ड टीथ. दिस विल मिनिमाइज द इंटरप्रॉक्सिमली डिस्प्ले ऑफ द पिंक जिंजाइवल एक्राइलिक. ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट डेंचर टीथ आर इन एज टू एज कॉन्टैक्ट इन सेंट्रिक ऑक्लूजन. व्हाट शुड बी डन? सीडी के टीथ जो हैं वो कंप्लीट एज टू एज कॉन्टैक्ट में है इन सेंट्रिक ऑक्लूजन, तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड ग्राइंड द कस्प इन सच अ वे दैट द इंक्लाइन of the upper cusp slides buccally and the lower cusp slides lingually. जो lower cusp का incline है वो lingually जाना चाहिए और जो upper cusp का incline है वो buccally जाना चाहिए. This is how you going to incline the teeth. Okay, lingually lower cusp and buccally the upper cusp, ताकि जब वो occlusion में लेके आए तो आपका खाना अच्छे से चिबा पाए, उतना अच्छे से चिबा पाए जितने अच्छे से वो मतलब उसको खाने में मज़ा तो आए कम से कम. Okay, the upper and the lower teeth can be too nearly end to end. For correction of this error, grinding of the teeth is done on the inclines of the cusp in such a way to move the upper cusp inclines buccally and lower cusp inclines lingually. In this way, the central fossas are made broader. The lingual cusp of the upper tooth is made narrow by grinding it from the lingual side, and the buccal cusp of the lower tooth is made more narrow by grinding it from the buccal side. ठीक है, दीज कस्प्स आर नॉट शॉर्टन्ड. देखो, जो हमारे फंक्शनिंग कस्प आ रहे हैं, जो मिलेंगे एक दूसरे से जाके, उनको हम शार्प बना रहे हैं, शार्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उनका हम बल घटा रहे हैं लेकिन उनको शार्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उनका डायमेंशन ऊपर नीचे नहीं घटा रहे हैं हम, वी आर डायमेंशन जो घटा रहे हैं वो हम घटा रहे हैं बक्कोलिंगुअली. ओके, या मीजो डिस्टली कह सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे नहीं करेंगे. ऑक्लूजन से नीचे को डायमेंशन नहीं घटाएंगे. वी आर गोइंग टू मेक दम शार्प. ओके, नेक्स्ट, raisin teeth are what? Raisin teeth are high in fracture toughness. Okay, raisin teeth have high resiliency and are tougher than porcelain teeth, making them less liable to fracture or chipping during impact. Next, true bite tooth indicator is used for determining what? True bite tooth indicator, it is used for determining the form of tooth. Okay, it's used for determining the form of tooth. The true bite tooth indicator is used to determine the size of upper central incisor, that is medial-distal and cervico-incisor length of the upper central incisor. Using true bite tooth indicator, ये कोई device जैसा है. One can also determine the facial form of a patient, that is square form, tapering form, ovoid form, and thus the tooth forms based upon J. Lyons-Williams classification. Next, the theory of matching teeth to face forms was advanced by who? Theory of matching teeth to the face forms was advanced by J. Lyon Williams. Okay, J. Lyon Williams हमारे एक scientist थे या dentist थे. In 1917, he formulated a typical theory according to which the shape of the tooth should be in accordance with the shape of the face. Okay, उसने face के हिसाब से tooth को classify किया था कि ऐसी शक्ल होगी तो ऐसे ऐसे दांत बनाने. ठीक है, नेक्स्ट, एनाटॉमिक टीथ शुड हैव अ कस्प एंगल ऑफ हाउ मच डिग्रीज? एनाटॉमिकल टीथ में 33 डिग्रीज का कस्प एंगल रहता है. कितनी सुंदर एनाटॉमी बनाई है हमारी. एनाटॉमिक टीथ जितने भी होते हैं उनका जो कस्प एंगल होता है दैट इज 33 डिग्रीज. सेमी एनाटॉमिक में 20 डिग्री का एंगल होता है, और नॉन एनाटॉमिक या फिर नॉन एनाटॉमिक जिसमें 0 डिग्री का कस्प एंगल आता है हमारे पास. ठीक है, जो कि हमारे कस्पलेस टीथ होते हैं. Next, when testing arrangement of teeth at a trial insertion of complete denture, the lower lip should be where when pronounced the letter F in the 50. जो lower teeth हैं, they should have light contact with the maxillary incisor edge. ठीक है, F बोलने की कोशिश करो तो maxillary central incisor के पास ये lower incisor जो है वो आ रहे हैं और बीच में जो है हमारा होठ आ जा रहा है. The labiodental sounds like F and V are made by the incisal edges of the upper incisors, that is third of the lower lip. If the upper anterior teeth are too short or set too high, the sounds like V will sound more like F. If they are too long or set too far down, the terms like F will sound more like V. ये मतलब F और V में आपका इंटरचेंज हो जाता है अगर आपने दांत उल्टे पुल्टे लगा दिए.
ठीक है। अगर टू शॉर्ट होंगे अपर इंसाइजर तो वी जो होगा वो साउंड होगा टुवर्ड्स एफ, ठीक है। अगर बहुत लंबे कर दिए ऊपर वाले इंसाइजर्स, ठीक है, तो एफ विल साउंड लाइक वी। नेक्स्ट, इन कंप्लीट डेंचर पेशेंट्स एफ एंड वी साउंड्स आर यूज फॉर डिटर्मिनिंग व्हाट। एफ और वी साउंड्स कहाँ यूज करते हैं? दे आर यूज टू डिटर्मिन द एंटीरियर रिलेशन ऑफ द मैक्सिलरी मैंडिबुलर टीथ, ठीक है। एफ और वी साउंड्स आर यूज फॉर डिटर्मिनिंग द एंटीरियर रिलेशन ऑफ maxillary and mandibular teeth. Next, when there is a prematurity in centric occlusion but not in eccentric or any other movements, then this reduces what? This reduces opposing fossa of the marginal ridge, ठीक है। या फिर जो opposing fossa उसकी marginal ridge हमें reduce करनी पड़ती है। Cusps of the teeth should be reduced only when the interference is in both centric and eccentric positions. Prematurity is in the centric position only when it is only when the requires. Next, when there is a prematurity in the centric occlusion but not in eccentric or any other movements, then which fossas are or the marginal ridges are to be reduced? Answer is opposing fossa या फिर marginal ridges हमें reduce करनी होती है। The cusps of the teeth should be reduced only when the interference in both the centric and eccentric position is present, ठीक है। मतलब जब सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक साइड से साइड लेके जा रहा है तब इंटरफेरेंस अगर प्रेजेंट है तभी हम कस्प और टीथ को रिड्यूस करते हैं। प्री मैच्योरिटीज इन द सेंट्रिक पोजीशंस ओनली व्हेन रिक्वायर्ड द रिडक्शन ऑफ अपोजिंग सेंट्रल फोसा और द मार्जिनल रिज। अगर सिर्फ सेंट्रिक रिलेशन में हमारी ऑब्स्ट्रक्ट मतलब एक दूसरे का लॉक कर जा रहा है, ठीक, प्री मैच्योरिटीज आ जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पे हम कस्प को थोड़ा थोड़ा सेंट्रल फोसा से या फिर मार्जिनल रिज से रिड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ रिलायबल गाइड फॉर पोजिशनिंग मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ इन कंप्लीट डेंचर इज व्हाट? रिलायबल गाइड फॉर पोजिशनिंग मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ in the complete denture, it is incisive papilla. Okay, the labial surfaces of the central incisors are usually 8 to 10 millimeters in front of the incisive papilla. Labial surface central incisor का 8 to 10 millimeter होता है in front of the incisive papilla. The distance will vary with the size of the teeth. ये distance जो है vary करता है with the size of teeth and resorption of the alveolar processes. If the resorption occurs vertically, the incisive papilla moves distally and the distance between the papilla to the teeth is increased. The resorption of the bone labially causes the papilla to appear on the labio-occlusal surface of the ridge, and the anterior teeth must be set in front corresponding to the amount of changing in the bone. Okay. Next, the best criteria for teeth selection is what? Best criteria for teeth selection is pre-extraction records. Patient की पुरानी photos. That's the best criteria how you can use for teeth selection. The extracted teeth are valuable for size and form, but should not be used for color selection because the color of the tooth will change after extraction. Chroma is what? Chroma का मतलब होता है intensity of the color, ठीक है। Chroma is the intensity of the color. Chroma or saturation is the amount of the color present per unit area of an object. Because the changes in the saturation levels, some teeth appear more yellower than other teeth. Next, squint test is used to guide for selecting what? Squint test आप करते हैं, that is used to guide for selecting the shade of the teeth. Okay, squint test for the shade of the teeth. The squint test, it is helpful in evaluating the color of the teeth with the complexion of the face. Color of the teeth with the complexion of the face. ठीक है, ऐसे squint करा के करोगे. When the eyelids are partially closed, to reduce the light, the colors of the artificial teeth held along the face of the patient are compared. The color that fades from view first is least conspicuous one in comparison to the color of the face. ये मतलब करके देखना पड़ेगा, उसके पहले नहीं लगता पता। स्क्विंट करवाते हैं आंखों को, पहले तो स्क्विंट कराएंगे थोड़ा सा ऐसे हाफ बंद कराएंगे, फिर इस जो कलर बचा हुआ है हमारा जो फेड आउट कर रहा है थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट, उसके मैचिंग में हम जो है वो दांत ढूंढेंगे। ओके, उसके मैचिंग में हम दांत ढूंढेंगे। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ कंपनसेटिंग कर्व्स इज व्हाट? अभी हमने पीछे बात की थी दैट कंपनसेटिंग कर्व्स आर आर्टिफिशियल कर्व्स, दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द डेंचर्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ बैलेंस्ड ऑक्लूजन, ठीक है। ये बैलेंस ऑक्लूजन प्रोवाइड करते हैं इन कंप्लीट डेंचर्स व्हेन द मैंडिबल इज प्रोट्रूडेड। ओके, नेक्स्ट, विल्स गॉज इज यूज्ड टू मेजर व्हाट? विल्स गॉज जो होता है दैट इज यूज्ड टू मेजर वर्टिकल हाइट। Wills gauge जो होता है that is used to measure vertical height. Wills gauge is used to measure the vertical height of the face. It is an instrument that enables the approximately angle at which it is applied onto the face and is to be reproduced during denture reconstruction. Bowley's gauge होता है एक और that is used to record the measurements between the borders of maxillary and mandibular dentures. Bowley's gauge जो है वो mandibular और maxillary dentures के बीच की recordings को measure करता है, ठीक है। when both the dentures are in occlusion, Bowley दोनों जब occlusion में होते हैं तब कंस्ट्रक्ट करता है,
ठीक है, और विल्स जो था वो वर्टिकल हाइट ऑफ द फेस को मेजर कर रहा है, ठीक है। और तीसरा आता है हमारे पास बूज बायोमीटर, BOOS बायोमीटर, ओके। इट्स अ डिवाइस दैट मेजर्स द मैक्सिमम फोर्स ऑफ द जॉ। बूज बायोमीटर जो होता है वो ऐसा डिवाइस है जो कि मैक्सिमम फोर्स कितनी लग रही है जॉ में उसको मेजर करता है। नेक्स्ट, लिंगुअली प्लेस्ड मैंडिबुलर पोस्टीरियर्स विल कॉज ऑल एक्सेप्ट व्हाट। अगर लिंगुअली प्लेस्ड मैंडिबुलर पोस्टीरियर्स है, लिंगुअली प्लेस्ड मतलब जीभ के बाद पास आ गए, तो जीभ के पास होने से सबसे पहले दिक्कत आएगी स्पीच में, ओके। दूसरी आएगी एक्सेसिव प्रेशर ऑन द रिजेस लगेगी, क्योंकि टेढ़ी लगाया आपने, बहुत ही ज़्यादा लिंगुअली लगा दी ना, तो अलग सी फोर्स लगेगी रिजेस के ऊपर जो कि रिजेस बियर नहीं कर पाती हैं उस हिसाब से, ठीक है। देयर विल बी टंग इंटरफेरेंसेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शेड ऑफ द टीथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, देयर विल बी नो फर्क इन द शेड ऑफ द टीथ। Lingual cusps of the molars are aligned with the mylohyoid ridge. Placing too far lingually can cause following things. First is gagging. Second is lack of tongue room posterior in the mandibular denture that may cause speech difficulties and the tongue interferences, and tongue biting is common. Next, sibilant sounds are produced at what? Sibilant sounds are produced between the rest and the occlusing positions. ठीक है, सिबिलियंट साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है बिटवीन द रेस्ट एंड ऑक्लूडिंग पोजीशंस। जैसे कि आप साउंड्स निकालते हो, जैसे एस हो गया, जी हो गया, श हो गया, ज हो गया, च हो गया, जे हो गया, ठीक है। इसमें अपर और लोअर इंसाइजर जो है वो अप्रोच करते हैं एंड टू एंड, बट दे डू नॉट टच, ओके। मोस्ट पीपल मेक द एस साउंड विद द टिप ऑफ द टंग अगेंस्ट द रूगल एरिया विद अ स्मॉल एयर टू एस्केप। If the space is too small, a whistle will result. If the space is too broad, lisping or will result. And S will sound as एश, ठीक है। वो बोलेगा सपना तो उसको सुनाई देगा शपना, ठीक है। तो ये दीज आर द थिंग्स, ओके। या फिर बोलेगा सुंदर तो उसको सुनाई देगा, मतलब सुंदर बोलेगा तो सुंदर सुनाई देगा उसको। जिसको बोलता है सिबिलियंट साउंड्स, ठीक है। सिबिलियंट साउंड्स कहाँ प्रोड्यूस होती है? बिटवीन रेस्ट एंड ऑक्लूडिंग पोजीशन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ ट्रायल of 56-year-old female patient, anterior teeth touch when these sounds are made. जैसे कि H हो गया, S हो गया, J हो गया, what does is indicate? देखो, जब H, S और J को बोलते वक्त उसकी जो सारे दांत है वो मिल जा रहे हैं, आगे वाले दांत मिल जा रहे हैं, टक टक हो रही है, क्लिकिंग की आवाज़ आ रही है, तो मतलब है कि वर्टिकल डायमेंशन ज़्यादा है, ठीक है। ये एक इंडिकेशन होती है, दिस इज मतलब कि वर्टिकल डायमेंशन थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर पेशेंट इसी के साथ अगर रहता है तो पेशेंट को TMJ दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, मस्कुलोस्केलेटल दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी और पेन शुरू हो जाएगी, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ H, S and J साउंड्स दे ब्रिंग द एंटीरियर टीथ वेरी क्लोज टुगेदर व्हेन करेक्टली प्लेस्ड with the lower incisors. They are moved forward to a position nearly directly in the upper central incisor and almost touching them. If the distance is too large, a vertical relation of occlusion that is too small may have to be established. If the anterior teeth touch when these sounds are made, the vertical relation of the occlusion is probably too great. ठीक है, अगर एंटीरियर टीथ टच कर जा रहे हैं तो मतलब वर्टिकल रिलेशन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, इरेगुलर पोजीशनिंग ऑफ द मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ विल रिजल्ट इन अबनॉर्मल साउंड्स ऑफ व्हाट? इरेगुलर पोजीशनिंग अगर मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ की हो रही है तो लेबियो डेंटल साउंड्स होगी वो हमारी अजीब आएंगी, लेबियो डेंटल साउंड्स। द लेबियो डेंटल साउंड्स लाइक F, V, they are helpful in determining the anterior posterior positioning of the upper central incisors in the occlusion plane. Linguodental sounds जैसे कि th, these are governed by the position of the tongue. Linguodental sounds are governed by the position of the tongue between the upper and the lower anteriors. Normally the tongue should project 3 mm anteriorly between the teeth, okay. Next, a 52-year-old female denture wearer experiences shallow blunt manner pronunciation of linguoalveolar sounds during try-in. How can the operator correct this problem? कैसे ऑपरेटर करेक्ट करेगा इस प्रॉब्लम को? He will reduce the thickness of the denture base, ठीक है। उसके सारे वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लंट आ रहे हैं, T बहुत ज़्यादा ब्लंट आ रहा है, D बहुत ज़्यादा ब्लंट आ रहा है, linguoalveolar साउंड जो है वो ब्लंट आ रही है, ठीक है। These are made when the tongue touches the anterior part of the palate. लिंगो एल्वियोलर साउंड्स होती है वो तब बनती है जब आपका टंग जो है वो टच करता है इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड्स ऑफ ऑल अ कंप्लीट डेंचर बिकॉज it is determined by the thickness of the denture base. If the denture is very thick, the patient is forced to pronounce the sounds in a shallow or a blunt manner. Okay, so ये चीज़ें आपको चेक करनी है। Tissue conditioners are not used for a long
time as they do what? They harden in the mouth. ठीक है. Tissue conditioners are highly plasticized acrylic resins that are applied temporarily to the fitting surfaces of the denture. ठीक है, जिससे कि वो डेंचर को एड करके रखता है. दे एड इन रिहैबिलिटेशन ऑफ द अब्यूज्ड टिश्यूज एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन द फंक्शनल मेथड ऑफ रीलाइनिंग डेंचर बेसिस. दे टेंड टू हार्डन एंड रफन विद इन 4 to 8 weeks ड्यू टू लॉस ऑफ प्लास्टिसाइजर. ठीक है, इसलिए उनको यूज़ नहीं करता जाता इतना ज़्यादा. रीलाइनिंग इज डन टू डू व्हाट? रीलाइनिंग इज डन टू करेक्ट द बेस टिश्यू रिलेशनशिप. Relining is a process of adding some of the material to the tissue side of the denture to fill the space between the tissue and the denture base. This relining is the corrective procedure that is done on the denture base and the tissue relationship without changing the occlusal relation. Rebasing एक दूसरा procedure होता है. Rebasing is the process of replacing all the base material of the denture. The main disadvantage of relining and rebasing is that the complete denture is चेंज इन सेंट्रिक रिलेशन. जो कंप्लीट डेंचर के डायमेंशन होते हैं इन द सेंट्रिक रिलेशन वो चेंज हो जाते हैं इसकी वजह से. नेक्स्ट, जिफी डेंचर इज द टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ डेंचर? जिफी डेंचर इज अ टाइप ऑफ इंटीरियर इमीडिएट डेंचर. ओके, जिफी डेंचर क्या है? इंटीरियर इमीडिएट डेंचर है. अलग अलग टाइप के डेंचर है हमारे पास. पहले आते हैं कन्वेंशनल क्लासिक इंटरमीडिएट डेंचर. आफ्टर दिस डेंचर इज प्लेस्ड, then after a healing is completed, the denture is refitted or relined to serve as a long-term prosthesis. The CID, that is conventional or immediate denture, it is usually selected when the anterior teeth remain or if the patient is willing to have the posterior teeth extracted before immediate denture procedures begin. ओके, इसके बाद बात आती है इंटरिम डेंचर की. इंटरिम डेंचर या फिर ट्रांजिस्टर डेंचर या फिर नॉन इमीडिएट डेंचर होते हैं. दीज आर द डेंचर्स दैट आर गिवन, ठीक है, आफ्टर द हीलिंग इज कंप्लीट. That is the second new complete denture is fabricated as long as the prosthesis is there. जब तक prosthesis चल रही है तब तक चलाएगा. जब तक पूरी हीलिंग हो जाएगी, एक बारी पूरी हीलिंग वगैरह होगी, उसके बाद नया डेंचर फैब्रिकेट किया जाता है. जो इंटरिम डेंचर्स होते हैं they are most commonly used in anterior and posterior teeth remaining until the day of extraction and placement of the immediate denture. The abbreviated type of IID has been called as Jiffy denture. इसी को हम जिफी डेंचर बोलते हैं. जिफी डेंचर डिफरेंट फ्रॉम द इंटरमीडिएट डेंचर इन दैट द जिफी डेंचर टीथ आर यूजुअली मेड विद tooth colored auto-polymerizing acrylic resin portions of the patient's pre-existing fixed or removable partial denture. ठीक है. The main disadvantage of Jiffy denture is that the materials used are not long-lasting. Example, in wear and curl stability, they are not long-lasting as conventional dentures and they are processed bases. ठीक है. Next, which of the following function of a template during procedure of tooth extraction and insertion of immediate denture? देखो, इसमें क्या होता है कि ट्रिमिंग ऑफ द जैग्ड एज ऑफ द बोन अगर हमें करनी पड़ जाए तो जो हमने डेंचर बना के रखा है प्री फैब्रिकेटेड वो फिट नहीं हो पाता है. ठीक है. द ट्रांसपेरेंट सर्जिकल टेम्पलेट रिवील्स द बोनी स्पिक्यूल्स ऑन द रिज विच मस्ट बी रिमूव्ड. दस द टेम्पलेट विल मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ सर्जरी नीडेड एंड हेल्प इन प्रॉपर फिटिंग ऑफ द डेंचर. ओके, आपको सिर्फ जैग्ड एजेस ऑफ द बोन को ट्रिम करने के लिए ये टेम्पलेट बना के यूज़ करना होता है. ठीक है. नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ सिलेक्टेड इनिशिया रूट्स in over denture therapy is called as what? Selective inertia roots over in denture, it is called as submucosal vital root retention. ठीक है. इन ओवर डेंचर्स मतलब आप किसी रूट के ऊपर डेंचर दे रहे हो. मान लो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट नहीं निकल पा रही है रूट जो है वो फ्यूज हो चुकी है एल्वियोलर बोन के साथ, तो आप क्या करते हो, उसको सबमर्ज करवा देते हो. ठीक है. इन ओवर डेंचर इंटीरियर अबाटमेंट्स आर प्रेफर्ड ओवर द पोस्टीरियर अबाटमेंट्स सिंस the anterior ridge is more vulnerable to resorption rather than the posterior ridge. Next, the main disadvantage of single complete denture against natural teeth is what? Main disadvantage of single complete denture against natural teeth is difficulty in making balanced occlusion. If porcelain teeth are used, there will be resorption of the natural teeth. If the acrylic teeth are used against the natural teeth, there will be the resorption of the resin teeth. Okay. However, acrylic resin teeth is a good compromise. आपका नॉर्मल दांत तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है कुछ भी करके. ठीक है. सो एक्राइलिक रेजिन टीथ इज़ अ गुड कॉम्प्रोमाइज़ फॉर जो भी आप दे रहे हो रेस्टोरेटिव. देखो, 2 दांत है आपकी, एक आपने दिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मान लो ज़िरकोनिया दे देनी चाहिए, वो क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर वाला जो नेचुरल टूथ है उसको अपग्रेड करता रहेगा. उसको देखो, पत्थर से सर मारोगे तो अपना सर फूटेगा. ठीक है, वैसा हिसाब है. लेकिन अगर आप रेजिन वाला दांत देते हो तो ये वाली चीज़ जो है, जो अपना दांत है वो नॉर्मल रहेगा. ये थोड़ा थोड़ा अपग्रेड कर सकता है, 5-6 साल में आप रिस्टोर करवा सकते हो. तो दैट इज़ अ बेटर चॉइस. Next, overdenture is used to do what? Overdenture is used to preserve the alveolar bone. First thing, overdenture कहाँ use होता है? To preserve the alveolar bone.
to maintain the retention and to maintain proprioception from the periodontal ligament. Okay, advantages of forward dentures are: it maintains the integrity of the residual ridge, it improves the retention and stability, it improves the proprioception, and if the abutment fails, the over denture can be used as a conventional denture. Okay, advantages of immediate denture. Advantages of immediate denture are protection of the extraction site, maintenance of vertical height of occlusion, and improved stability. Okay, the need for relining and arrangement of the anterior teeth without trine are the main disadvantages of immediate dentures. Next, true about immediate denture is what? Immediate denture के लिए क्या क्या true रहता है? देखो, the patient experiences less pain since the denture acts as the point. Patient में less pain होती है since the denture acts as a point of application of force. denture ज़्यादातर forces और बाहर के जो fluids वगैरह होते हैं उनको बेर कर लेता है. ये immediate denture का फायदा है. Occlusal correction should be done after 48 hours. दैट इज द थिंग, दैट्स द थिंग. ठीक है, ऑक्लूजल करेक्शन आपको 48 घंटे के बाद ही करनी है. अवॉइड एनी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑफ द ईडेंचुलस पीरियड. ओके, साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल दोनों ट्रॉमा अवॉइड करना है टू द ईडेंचुलस पीरियड. जब तक ईडेंचुलस है वो, तब तक उसको मेंटली भी थोड़ा बहुत स्टेबलाइज रखना है और उसको फिजिकली भी स्टेबलाइज रखना है उस टिश्यूज को. ठीक है, आफ्टर इंसर्शन इमीडिएट डेंचर शुड बी लेफ्ट इन द माउथ फॉर द फर्स्ट 24 hours. इफ द डेंचर्स आर रिमूव्ड अर्लियर देन 24 hours, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू री इंसर्ट देम बिकॉज ऑफ सीवियर पेन. The occlusal adjustment should be done after 48 hours after the swelling and inflammation has been subsided. The dentures should be relined after calcification of the extraction socket, that is after 6 to 8 months. Next, Boucher method of relining is a what? Boucher method of relining, it is an open mouth technique. Boucher technique, it is a static open mouth relining technique. In this method, both the maxillary and the mandibular dentures are relined at the same time, and they use zinc oxide eugenol as an impression material. Winkler functional relining method utilizes the tissue conditioners as impression material. The chair-side relining method makes the use of acrylic that is added to the denture and is allowed to set in the mouth to produce instant relining. Next, one of the major disadvantage of immediate denture treatment is what? Major disadvantage of immediate denture treatment, it is there is a need to reline the denture. Okay, immediate denture वाले को आपको reline करना पड़ेगा जब सारी चीज़ें सबसाइड हो जाएंगी तब. An immediate denture is a denture that is inserted immediately onto the extraction of the remaining teeth. After the extraction of the remaining teeth, disadvantages of the immediate denture are the fit appearance and the comfort is very difficult to predict. There is no trine in the immediate denture. Often it requires tissue conditioners during the healing phase. Okay, and it needs a definite relining after a certain time जब पूरी हीलिंग वगैरह हो जाएगी. नेक्स्ट, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमीडिएट डेंचर एंटीरियर टीथ दैट आर एक्सट्रैक्टेड आफ्टर डेंचर कंस्ट्रक्शन. ठीक है, जब हम इमीडिएट डेंचर बनाते हैं तो एंटीरियर टीथ एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं आफ्टर डेंचर रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है, डेंचर की कंस्ट्रक्शन के बाद एंटीरियर दांत निकालोगे. पहले आपने डेंचर बना लिया, इमेजिन करके जितनी आपने जो कास्ट पे जो दांत थे उनको निकाल के उसके हिसाब से आपने डेंचर बना लिया. अब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे और वही डेंचर इमीडिएटली दे देंगे. ट्रीटमेंट प्रोसीजर फॉर इमीडिएट डेंचर इज दैट द पोस्टीरियर टीथ आर एक्सट्रैक्टेड एंड द सॉकेट्स आर अलाउड टू हील. ओके, impression cast are made. Anterior teeth are present in the patient's mouth and the master cast is present. Master cast is broken and trimmed up to the cervical margin and is smoothened for the anterior teeth. Denture is fabricated. During the next appointment, the anterior teeth are extracted and the remaining denture is placed onto the टोटल जितना भी हमने बनाया हुआ है. ठीक है, जो हमने डेंचर प्री फैब्रिकेट किया उसको हम वहाँ पे प्लेस कर देंगे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इमीडिएट डेंचर. इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है ऑफ द इमीडिएट डेंचर. व्हाट आर द एडवांटेजेस, हमने पीछे बहुत बात की. रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ईजी अडेप्टेशन हो जाती है नए डेंचर के लिए, ये एडवांटेज रहते हैं. लेकिन चेयर साइड टाइम आपका इंक्रीज कर जाता है. मान लो कहीं स्पिक्यूल रह गया, कहीं पेशेंट को डिस्कम्फर्ट है, तो वहाँ पे चेयर साइड टाइम विल बी इंक्रीज. ठीक है, चेयर साइड टाइम विल बी इंक्रीज. Disadvantages of immediate denture are that the primary advantage is maintenance of the patient's appearance because of no edentulous period. Circummolar support of the muscle tone, vertical dimension of occlusion, jaw relationship and face height can be maintained. The tongue will not spread due to the loss of teeth. Less post-operative pain because the protection of the sites of the extraction. Easier to duplicate the natural tooth shape and position plus arch form and width even in the horizontal and the vertical position क्योंकि आपकी कास्ट के ऊपर अभी भी दांत प्रेजेंट थे. ठीक है, and the anterior teeth can be more accurately replicated.
The patient is likely to adapt more easily to the dentures at the same time when recovery from the surgery is progressing. The speech and mastication are rarely compromised and the nutrition can be maintained. The availability of the tissue conditioning materials allow for considerable versatility in the correction and refinement of the denture fitting surfaces, both at insertion stage and at subsequent appointments. Overall, the patient's psychological and social well-being is preserved. Next, when closure in the intercuspal position is attained during mastication, movement to stop for about dash millisecond before another cycle begins. ठीक है, जो मूवमेंट होती है वो स्टॉप करती है फॉर 194 मिलीसेकंड्स. कितने? 194 मिलीसेकंड्स के लिए मूवमेंट स्टॉप करेगी. मैस्टिकेशन दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग, क्लोजिंग एंड पावर स्ट्रोक. ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, पावर स्ट्रोक चलता है. ये सारी साइकिल एक बारी में चलती है. इसलिए जब जीभ वगैरह बीच में आ जाती है, होठ वगैरह बीच में आ जाता है, तो वो चब जाता है एकदम से. ठीक है, that is the reason behind it. Opening में क्या होता है? Opening starts from the static intercuspal position where the jaw movement pauses for 194 milliseconds in the chewing cycle. The muscle activity begins in the inferior head of the lateral pterygoid and digastric. Muscle activity begin कर रही है in the inferior head of the lateral pterygoid and digastric. All other muscles are inactive. ठीक है, closing के दौरान क्या होता है? Initiation of the jaw closing occurs with the activation of inferior head of the lateral pterygoid. जब inferior head of the lateral pterygoid activate होगा तब initiation of the jaw closing होती है. ठीक है, अब इसके साथ साथ middle pterygoid, temporalis और masseter muscle भी अपना काम कर रहे होते हैं. The activity peaks 20 to 30 milliseconds before the onset of intercuspal position. Okay. Next, all mandibular motions in different type of CD is either rotation or what? जितने भी मैंडिबुलर मोशन होते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ सीडीज, इट इज ईदर रोटेशन और ट्रांसलेशन. दो ही मोशन पॉसिबल है, या तो रोटेशन होगी या होगी ट्रांसलेशन. एनवलप ऑफ मैंडिबुलर मोशन इज ईदर रोटेशन और ट्रांसलेशन. मैस्टिकेशन इज नेवर प्योरली अ हिंज मूवमेंट बट इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी movements. Next, the articulated diagnostic cast help in following except what? Articulated diagnostic casts, they are using a phase pore transfer method and a centric relation record. Okay, it permits a detailed analysis of the occlusal plane and the occlusion. The diagnostic procedures can be performed for a better diagnosis and better treatment plan. The tooth preparations can be rehearsed on the cast and diagnostic waxing कैन प्रपोज द ट्रीटमेंट. जो डायग्नोस्टिक वैक्सअप है वो आपका ट्रीटमेंट को पूरी तरह से गाइड कर सकता है कि कैसी कैसी ट्रीटमेंट रहेगी आपकी, लेकिन इट कैन नॉट हेल्प इन फैब्रिकेशन ऑफ वैक्स पैटर्न फॉर कास्टिंग. ओके, डायग्नोस्टिक कास्ट होती है वो वैक्स पैटर्न फॉर कास्टिंग को बनाने के लिए हेल्प नहीं कर सकती. ओके, वी कैन perform a mock tooth preparation using diagnostic cast. We can do a diagnostic wax up to evaluate outcome. We can do a detailed analysis of the occlusal plane and the occlusion. ठीक है, लेकिन हम वैक्स पैटर्न को कास्ट के ऊपर क्राउन कटिंग करके फैब्रिकेट नहीं कर सकते. ठीक है, वो हमें पेशेंट के मुंह के अंदर ही करना पड़ेगा और उसके बाद उसका इंप्रेशन लेना पड़ेगा. नेक्स्ट, 65-year-old patient previously had dentures made up of porcelain teeth from UK. Now in India he was given a new set of CD made up of acrylic teeth. Compare with the porcelain teeth, acrylic teeth will have all of the following except what? देखो, acrylic teeth जो होते हैं वो केमिकली बॉन्ड कर जाते हैं टू डेंचर. दे हैव मिनिमल अब्रेजन ऑफ अपोजिंग डेंटेशन. साइलेंट इन कॉन्टैक्ट होते हैं एक्राइलिक के दांत, लेकिन ये एक्राइलिक के दांत हार्ड ऑर्बिटल नहीं होते. ओके, देयर इज अ डिफरेंस इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्राइलिक एंड पोर्सिलेन. अब्रेजन रेजिस्टेंस में अगर बात करें तो पोर्सिलेन हैज वेरी हाई अब्रेसिव रेजिस्टेंस. एडजस्टेबिलिटी, पोर्सिलेन टीथ था डिफिकल्ट टू एडजस्ट, एक्राइलिक टीथ आप ट्रिम करो, दोबारा सिक्योर लगाओ, ऊपर से नया दांत लगा दो. ठीक है, बॉन्डिंग, एक्राइलिक टीथ केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, पोर्सिलेन टीथ मैकेनिकल बॉन्डिंग करते हैं. स्टेनिंग में एक्राइलिक टीथ आर इजिली स्टेन्ड. ठीक है, पोर्सिलेन टीथ दे डज नॉट स्टेन. परकोलेशन में, percolation is absent in acrylic teeth. When the acrylic denture base is used, percolation is absent. ठीक है, percolation is present when the acrylic denture base is used. ठीक है, जब पोर्सिलेन के साथ आप एक्राइलिक में बॉन्डिंग करवाते हो तो परकोलेशन प्रेजेंट होती है. क्लिकिंग साउंड आपकी पोर्सिलेन में आएगी. ईज ऑफ फैब्रिकेशन आपकी एक्राइलिक की है. ईज ऑफ रीबेसिंग जो है वो पोर्सिलेन दांत की होती है, क्योंकि अगर दांत जो है रीबेसिंग में क्या हो रहा है, क्योंकि वो मैकेनिकली बॉन्ड कर रहा है, इट्स नॉट केमिकली बॉन्डिंग. तो हल्का सा भी यू ब्रेक द मैकेनिकल रिटेंटिव फॉर्म तो जो पोर्सिलेन वाला दांत है वो बाहर आ जाएगा. सो यू कैन अगेन यूज इट. ओके, और ट्रॉमा टू द डेंचर बेयरिंग एरिया जो पोर्सिलेन टीथ है उसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि इट्स मोर स्ट्रॉन्गर, मोर फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन द डेंचर बेस एरिया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मेटल डेंचर बेस. देखो, एडवांटेजेस क्या क्या हैं उसके मेटल डेंचर बेस के. वो वैसे तो उसका एडवांटेज ये है कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. ठीक
ठीक है। बाकी एक डिसएडवांटेज है कि थर्मल कंडक्टिविटी करवाता है, और ये एडवांटेज भी है थर्मल कंडक्टिविटी का कि मुंह में कुछ खाएगा तो उसको गर्म और ठंडे का पता चल जाएगा गले में जाने से पहले, वो एक एडवांटेज है। और अगर बहुत ही कुछ गर्म खा ली तो वो डायरेक्टली म्यूकोजा को जला देगा, दैट इज अ डिसएडवांटेज। डायमेंशनली स्टेबल होता है, ठीक है। बल्क कम रख सकते हो आप, पतला डेंचर बना सकते हो आप, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ पतला डेंचर बना सकते हो, लेकिन उसका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ फैब्रिकेटिंग अ मेटल डेंचर बेस इज़ द वेट। टाइटेनियम तो लगाओगे नहीं, ठीक है। टाइटेनियम इज कॉस्टली, either cost or weight, you have to compromise in either one, okay. Metal denture bases, they can be fabricated by using gold alloys, cobalt, chromium, nickel, chromium alloys. Advantage is improved thermal conductivity that gives good sensory interpretation. Mandibular dentures are heavy, so the retention and stability is improved. They are strong, even in thin sections they are strong. Thin sections are very comfortable for the patient. They are easier to maintain, ठीक है। डिसएडवांटेज, लेसर मार्जिन ऑफ एरर परमिसिबल इन द पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया। आप उसको दोबारा रीबेस नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा कम मार्जिन मिलता है कि आप गलती करो। एक्सपेंसिव, ग्रेटर इनिशियल एंड रेस्टोरेटिव कॉस्ट, मोर टाइम फॉर फैब्रिकेशन, कैन नॉट बी रीबेस्ड। वेट, इंक्रीज वेट, ऑल्दो अ नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर एन अपर डेंचर प्रूव्स बेनिफिशियल in a mandibular denture, as the weight tends to keep the denture in close approximation with the basal tissues, resulting in increased stability of the dentures. Next, the leaf gauge test is used to assist what? Leaf gauge test जो है वो आप एक articulating paper लेके करते हो. It is used to locate the musculoskeletal stable position of the mandible. Used to locate the musculoskeletal position of the mandible. A leaf gauge and an anterior jig may be used to assist the recording of the reproducible jaw position for the restorative and the prosthodontic treatment. ठीक है. Next, Habsburg jaw is what? HAPSBURG jaw. इसको क्या jaw होता है? Habsburg jaw जो होता है that was seen in the Hispano-Austrian Imperial Kingdom. It's characterized by mandibular class 3 prognathism. ठीक है. क्लास 3 प्रोग्नोसिस के साथ हैसबर्ग जॉ होता है. दैट इज पाउटिंग ऑफ द लोअर लिप, दैट इज हैसबर्ग लिप. ये बंदे का नाम था उस टाइम. इट्स प्रोमिनेंट ऑफन मिस हैपन नोज होता है. मिस हैपन नोज तो कुछ हो गया, गलत हो गया, वैसा वैसा नोज होता है. फ्लैट मेलार एरियाज होते हैं एंड माइल्डली इवर्टेड लोअर आईलिड्स होते हैं. ठीक है. दिस इज द इमेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ऐसी ऐसी शक्ल हो जाती है बंदे की. ठीक है. नेक्स्ट, the principal disadvantage of metal denture base is what? The principal disadvantage of metal denture base is it is difficult to reline. Okay, weight चलो bear कर लेंगे, retentive form होगा, weight bear कर लेंगे, लेकिन main disadvantage is it cannot or it is very difficult to be relined properly. It's light in weight, bonds well to acrylic and is tissue tolerant, but it is difficult to reline. Okay, it is difficult to reline. Metal denture base are difficult to reline. Next, which of the following is the main ingredient of denture cleaning powder or denture cleaning tablets? Denture cleaning tablet में हमारे पास सोडियम परबोरेट का सॉल्यूशन होता है. ठीक है. वो सॉल्ट होता है, वो पानी में घुल के सोडियम परबोरेट जो है खुल जाता है. All the denture cleaning powders and tablets contain a detergent that is along with the flavoring agent, alkaline compounds and sodium perborate. The main component is sodium perborate. It decomposes in water to form peroxide solution, which in turn breaks down to liberate the oxygen. This nascent oxygen bubbles remove the debris from the surface of the denture. Okay, तो इससे ये cleansing करवा देता है denture की. Next, cold mold seal, it's used as a separator and is made up of what? Cold mold seal जो है वो 2% sodium alginate का बना होता है. Cold mold seal is made up of 2% sodium alginate. Various type of separating media are used. Tin foil is a separating media. Cellulose lacquers is a separating media. Solution of alginate is a separating media. Components of calcium oleate, separating media. Soft soap, sodium silicate, starch, evaporated milk. These are all the sources or separating medias that are used. Sodium alginate solution, that is known as cold mold seal. It is widely used separating medium because of the effective and easy manipulation of the sodium alginate. The composition of the sodium alginate solution is sodium alginate 2% in water, sodium phosphate, glycerin, alcohol and preservatives. When applied onto the cast, the sodium alginate in the solution reacts with calcium on the cast, forming an insoluble calcium alginate that forms a membrane and serves as a separating medium. Okay, इसलिए हम उसे separating media की तरह यूज़ करते हैं. Next, the maximum occlusal forces exerted by a patient who is edentulous would be how much? कितनी maximum force एक edentulous patient जो है वो exert कर सकता है dentures के help से?
Answer is 50 psi की force. The maximum occlusal forces of the average denture patient is 50 psi. That of the denture patient it is 150 to 250 psi. ठीक है. Average जिसका दांत नहीं बचा हुआ है ई डेंचुले से पूरा, वो 50 psi तक की फोर्स लगा सकता है. जिसके पास दांत है सारे, वो 150 लेके 250 तक psi की फोर्स लगा सकता है. द मैक्सिमम बाइट फोर्सेस डिक्रीजेस द मसल एट्रोफी, प्रोग्रेसेस थ्रू ईयर्स ऑफ edentulism. A maximum occlusal force of 5 psi may be result of 15 years without teeth. मतलब फोर्स जो है वो घटती जाती है धीरे धीरे. 5 psi की फोर्स रह जाती है लास्ट में विदाउट टीथ, अगर 15 साल तक बंदे का दांत नहीं रहे. अ पेशेंट हु ग्राइंड्स और क्लेंचेस कैन एक्सर्ट आउट टू 1000 psi फोर्स. जो स्ट्रेस वाले पेशेंट होते हैं, जैसे जो ग्राइंड करते रहते हैं, जो क्लेंच करते रहते हैं 24 घंटे में, उनकी फोर्स 1000 psi तक भी जा सकती है, वहाँ पे देखा गया. अकॉर्डिंग टू जाब एंड बुलेंडर, ये मतलब आपका एक रेफरेंस लिया है. फॉर नेचुरल टीथ द मास्टिकेटरी लोड्स इन द रीजन ऑफ 44 pounds or 20 kgs and maximum force of 13 pounds to 16 pounds, that is 6 to 8 kgs have been recorded during chewing of complete dentures. ठीक है. जो हमारे नेचुरल टीथ है उसमें आपका 20 kgs या फिर 44 pounds या फिर 6 to 8 kgs का फोर्स जो है वो मैक्सिमम फोर्स देखा गया है. ठीक है. ठीक है. लोड आपकी आती है 20 किलो की. लोड इज 20 kgs और जो फोर्स लग रही है दैट इज 6 to 8 kgs पर डेंटेशन. ओके. इनकम्प्लीट डेंचर्स. डेंचर क्लीनिंग टैबलेट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट व्हाट. डेंचर क्लीनिंग टैबलेट्स में अल्कलाइन मटेरियल होता है, सोडियम परबोरेट होता है, डिटर्जेंट होता है, बट इट डज नॉट इंक्लूड हाइड्रोजन परऑक्साइड. हाइड्रोजन परऑक्साइड पहले से नहीं डाला होता. ठीक है. हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं होता. अभी हमने पीछे बात की थी. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमर्शियल डेंचर क्लीनर्स आर अल्कलाइन परऑक्साइड्स एंड हाइपोक्लोराइड्स. Alkaline peroxide are provided in the powder and tablet form. The material contains alkaline compounds, detergents, sodium perborates, and flavoring agents. When mixed with water, sodium perborate decomposes, releasing oxygen. Other denture cleansing agents like hypochlorite solutions, dilute acids, they are available in the solution form, not in the tablet form. Next, fracture of denture at midline reason is what? देखो, fracture of denture अगर midline पे हो रहा है तो reason रहता है excessive resorption of the alveolar ridges. ओके. द रिजॉर्प्शन होता है एल्वियोलर रिजेस. रिजेस जो है पूरी तरह से रिजॉर्व करके पेशेंट चबा रहा है, तो रिजेस के नीचे वाले जो हिस्सा है वो खाली है, तो वहाँ से जब प्रेशर लगता है तो बीच का जो मिड पैलेटाइन वाला हिस्सा है वहाँ से डेंचर टूट जाता है. The midline fracture of the maxillary complete denture is the fracture that is most commonly seen in dentures. This is largely associated because the ridges resorb and remodel. Ridges जो है वो resorb कर जाती है और remodel कर जाती है. The palatal bone does not resorb. पैलेटल बोन इतनी ज़्यादा रिजॉर्व नहीं करती जितनी रिजेस करती. दिस लीड्स टू हाई सेंटरिंग ऑफ द डेंचर. ठीक है. फोर्स जो है वो हाईली सेंटर पे ऑफ द डेंचर कंसनट्रेट हो जाती है, वेयर द डेंचर प्राइमरली कॉन्टैक्ट्स इन द हार्ड पैलेट एंड सेकेंडरली कॉन्टैक्ट्स इन द रेजिडुअल रीजेस. मतलब रेजिडुअल रीजेस पे पूरा कॉन्टैक्ट नहीं है, हार्ड पैलेट पे पूरा कॉन्टैक्ट है. दिस रिजल्ट इन द कॉन्स्टेंट रॉकिंग इफेक्ट विच एक्सेलरेट्स द बोन लॉस, causing a steady loss of stability of the denture. In time, leading to stress fracture of the denture base. Poor fit was the prime cause or in the upper denture fracture. Poor fit जो था वो prime cause था in the upper denture fracture. Such denture flex in the mouth during function around the midline and due to the repeated small loading during mastication lead to fatigue and fracture. Next, during insertion of denture the patient develops gag. The treatment is what? अगर insertion of denture पे patient develop कर ले रहा है gag तो treatment रहेगी mechanical alteration. What will be the treatment? Mechanical alteration. Patients sometimes have gag reflex during insertion of the complete denture. That may be due to the overextended borders, especially in the posterior part of the maxillary denture and the distolingual part of the mandibular denture. Distolingual part of the mandibular denture gagging करवा देता है और posterior part of the maxillary denture gagging करवा देता है. और poor retention of the maxillary denture. ठीक है. अगर आपके डायमेंशंस जितने चाहिए उससे ज़्यादा हैं तो आपका जो मसल मूव कर रहा है या आपका जो भी सॉफ्ट टिश्यू मूव कर रहा है वो डेंचर को उसकी सील ब्रेक कर देगा, तो वो खुल जाएगा डेंचर आपका. मोर ऑफन द कंडीशन इज ड्यू टू अनस्टेबल ऑक्लूजल कंडीशंस और इंक्रीज वर्टिकल डायमेंशन एज द अनबैलेंस्ड और फ्रीक्वेंट occlusal contacts may prevent adaptation and trigger gag reflex. So mechanical alteration of the dentures bring down the gag reflex in such patients. Mechanical alteration of the denture bring down the gag reflex in such patients. First line of treatment is correction of the denture borders. First line of treatment, correction of denture borders. If the patient still gags, use of medication or psychological counseling is advised for the patient. Next, during insertion, you notice that there are slight changes in the correlation of denture, muscle and bone.
इंसर्शन के दौरान आपने नोटिस किया कि वहाँ पे स्लाइट चेंजेस इन द कोरिलेशन ऑफ डेंचर मसल एंड बोन. व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एंटीरियर गाइडेंस बिटवीन मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ एंड हैज़ अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट. ठीक है, मतलब ये मैंडिबुलर मूवमेंट पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है. क्वेश्चन क्या था? ड्यूरिंग इंसर्शन यू नोटिस दैट देयर आर स्लाइट चेंजेस इन द कोरिलेशन ऑफ द डेंचर मसल एंड बोन्स. व्हाट डू यू इन्फर अबाउट एंटीरियर गाइडेंस between maxillary and mandibular anterior teeth that has direct influence on the direction of movement of mandible. ठीक है, दो चीज़ें देखनी होती है, गाइडेंस और इंटीरियर गाइडेंस. गाइडेंस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस ऑफ मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर टीथ ऑन मैंडिबुलर मूवमेंट. जब मैंडिबल मूव कर रही है, बंद की हमने, तो ये दांतों के साथ कस्प पे आके कस्प इसको गाइड कर रहे हैं कि कहाँ रुकना है इसने. ठीक है, ये चीज़ होती है गाइडेंस. फिर आती बात एंटीरियर गाइडेंस की. The guidance of the mandibular during eccentric movements are provided by occlusal contacts. जो आप आगे का लेके आते हो, जो एंड टू एंड लेके आ रहे हो आगे वाले दांतों को, that is leading to anterior guidance. ठीक है, दिस इज एंटीरियर गाइडेंस की आगे प्रोट्रूड कहाँ तक करना आइडियल रहता है, उससे आगे करना आपको ज़रूरी नहीं रहता है. नेक्स्ट, फॉर अ लूज कंप्लीट डेंचर रीलाइनिंग एंड रीबेसिंग कैन बी डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. किस कंडीशन में आप रीलाइनिंग और रीबेसिंग कर सकते हैं? ठीक है, आंसर इज द पेशेंट इज़ पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड अ न्यू डेंचर. तो वहाँ पे आप रीलाइनिंग और रीबेसिंग ज़्यादातर करेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रेफर नहीं करना है क्योंकि उससे सेंट्रिक रिलेशन जो है वो हिल जाता है. सेंट्रिक रिलेशन गेट्स डिस्टॉर्टेड बिकॉज ऑफ रीलाइनिंग एंड रीबेसिंग. ओके, नाउ रीलाइनिंग एंड रीबेसिंग हमने पहले बात की थी. क्या होता है? रीबेसिंग में हम पूरा बेस ही दोबारा बनाते हैं. रीलाइनिंग में हम क्या करते हैं कि जो टिश्यू सरफेस है उसको दोबारा से हल्का सा रीअडेप्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ कोल्ड क्योर और सेल्फ पॉलीमराइजिंग रेजिन. Immediate dentures at 3 to 6 months after the original construction could require relining and rebasing in the case of diabetes patients. When the residual alveolar ridges have resolved and the adaptation of the denture bases to the ridges is poor. When the patient cannot afford new denture, geriatric or chronically ill patient, centric occlusion should coincide with the centric relation. ऐसे कंडीशन में हम रीलाइनिंग रीबेसिंग कर देते हैं. ठीक है, जहाँ सब चीज़ें हमारी फेवरेबल है ज़्यादा, या फिर पेशेंट नहीं फेवर कर पा रहा है, पेशेंट नया डेंचर नहीं बना पाएगा, नहीं आ पाएगा हमारे पास, नहीं उसको इतनी देर बिठा सकते, तो उस कंडीशन में वी कैन डू रीलाइनिंग एंड रीबेसिंग. कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिजॉर्प्शन हो चुकी है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रिजॉर्प्शन हो चुकी है, देन इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. यू विल नॉट गो फॉर रीलाइनिंग एंड रीबेसिंग. अब्यूज्ड सॉफ्ट टिश्यू कॉन्टैक्ट्स आर प्रेजेंट, मतलब सॉफ्ट टिश्यू जो है बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा है. ठीक है, उस पर बहुत, जो आप नया मटेरियल डाल रहे हो और पुराना मटेरियल डाल रहे हो, उसके बीच में डिफरेंस आने की वजह से सॉफ्ट टिश्यू दिक्कत दे रहा है कुछ भी तरीके से. ठीक है, इट कुड रिजल्ट इन एडिनोमास. ठीक है, सलाइवरी एडिनोमास बन सकते हैं. ठीक है, उसके साथ पेशेंट कंप्लायंस ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स. अगर टीएमजे की दिक्कतें आने शुरू होंगी तो रीलाइनिंग रीबेसिंग नहीं करोगे, दोबारा से सारी असेसमेंट चलती है. डेंचर हैव पुअर एस्थेटिक्स, पूरे दांत किसी हैं. ठीक है, तो क्या करोगे, उसका पहन के भी क्या करोगे. ठीक है, डेंचर क्रिएटिंग स्पीच प्रॉब्लम्स, उसमें भी करोगे. सीवियर ऑशियस अंडरकट्स एग्जिस्ट अंटिल सर्जिकल रिमूवल एंड हीलिंग अकर्स. आप जो है वो वहाँ पे नया डेंचर नहीं दे सकते. ठीक है, सीवियर ऑसियस अंडरकट बन गया, ऐसे ही बन गया, बिल्कुल फ्लैट ही हुई है, डेंचर बाहर ही नहीं निकलता, तो वहाँ पे भी आपको या तो बोन रिकन्स्ट्रक्शन करवानी, एल्वियोलोप्लास्टी वगैरह करवानी पड़ेगी, या फिर जहाँ पे भी आपके अंडरकट्स वगैरह प्रेजेंट है वहाँ पे सर्जिकल रिमूवल, मतलब पूरा उसका जो प्रोसीजर है वो दोबारा चलेगा. Okay, next, patient with complete denture during insertion appointment complains of pain while swallowing. There is overextension of the distolingual aspect. The muscle involved is what? Distolingual aspect पे आपका कौन सा muscle involved होता है? Answer is superior constrictor. The distolingual portion of the lingual flange of the mandibular denture is influenced by glossopalatine and superior constrictor muscles. किससे इन्फ्लुएंस होता है? मैंडिबुलर डेंचर की बात कर रहे हैं. By glossopalatine and superior constrictor muscles, which constitute retromylohyoid curtain. So overextension in the distolingual aspect creates pain while swallowing. ठीक है, माइलोहायोइड जो है वो इन्फ्लुएंस करता है मिड एंड एंटीरियर पोर्शंस ऑफ द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिंगुअल फ्लैंज. माइलोहायोइड इन्फ्लुएंस करता है मिड एंड इंटीरियर बॉर्डर्स ऑफ द एंटीरियर पोर्शंस ऑफ द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिंगुअल फ्लैंज. ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्टोलिंगुअल एस्पेक्ट में ओवर एक्सटेंशन अगर मैंडिबुलर की और पेशेंट को स्वेलिंग के दौरान दिक्कत आ रही है तो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट, अ पेशेंट विद पुअर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल. Poor neuromuscular control है. He presents with occlusal prematurities during insertion of CD. Occlusion can be corrected by what? Occlusion को correct करने के लिए आप interocclusal records लेंगे सबसे पहले. You will take interocclusal records and you will correct them on the articulator.
interocclusal records and you will correct them on the articulator. After processing is done, the dentures should be returned to their previous articulator positions on their cast before separation. The deflecting occlusal contacts are removed by grinding with the cast on the articulator. The original occlusal vertical dimension is thus recaptured, and for the most part the centric occlusal and relation positions of the cusps to the opposing tooth surfaces may be secured. कार्बोरंडम पेस्ट शुड नॉट बी यूज टू एलिमिनेट एरर्स इन ऑक्लूजन. ठीक है, कार्बोरंडम पेस्ट मतलब कि एरर्स इन ऑक्लूजन को थोड़ा बहुत ईज देते हैं, उसके बाद दे देते हैं पेशेंट को वापस. वो नहीं करना है. टेक इंटरऑक्लूजल रिकॉर्ड्स एंड करेक्ट बाय यूजिंग एन आर्टिकुलेटर. Next, ridge soreness in denture patients may be associated with what? Ridge soreness in denture patients, it may be associated with the overextension of the denture. ठीक है, डेंचर का एरिया जो है वो अगर ओवर एक्सटेंडेड है तो रिज के अराउंड आपकी सोरनेस हो जाती है. रिज सोरनेस रिजल्ट्स फ्रॉम ओवर एक्सटेंडेड डेंचर फ्लैंजेस एंड अनबैलेंस्ड occlusion. It appears as small painful lesions covered by gray necrotic membrane and surrounded by inflammatory halo with firm and elevated borders. Okay. Next, minor modifications done in the existing tooth contours to improve a smile is termed as what? Minor modifications done in the existing tooth contours to improve the smile is termed as cosmetic contouring. क्या बोलते हैं उसको? Cosmetic contouring. It's also known as odontoplasty or reshaping of the teeth. It is a simple procedure that removes some of the enamel to change the form of your tooth or teeth. Okay. The goal of this cosmetic contouring is to alter the teeth shape, length and appearance to improve the look of the patient. वो patient की aesthetics के ऊपर depend करता है. Patient wants it, you do it. If it is required, only then. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग फ्लास्किंग ऑफ डेंचर्स. आपको क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी है ड्यूरिंग फ्लास्किंग ऑफ डेंचर्स, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं? आंसर इज पेट्रोलियम जेली. यू आर नॉट गोइंग टू यूज़. ओके, यू कैन यूज़ टिन फॉइल, you can use tin foil substitute, you can use silicone lubricant, okay, but you are not going to use petroleum, okay, because petroleum, it leads to porosity. Petroleum leads to porosity. Okay, petroleum leads to porosity. Do not use it. मैंने बहुत बार करी है. The commonest type of porosity that results in fluid raising technique is what? The commonest type of porosity that results in fluid raising technique, it is air inclusion porosity. The fluid resin technique, it employs a pourable chemically activated resin for the fabrication of dentures. जैसे हम करते हैं. When mixed in proper proportions, these components yield a low viscosity resin. Subsequently, the resin is poured into the mold cavity subjected to increased atmospheric pressure and allow it to polymerize, जो कि हम फ्लास्किंग के दौरान करते हैं. Advantages of fluid resin technique is that there is improved adaptation to underlying tissues, soft tissues, decreased probability of damage to the prosthetic teeth and denture bases during deflasking. It reduces the material cost. There is simplification of flasking, deflasking and finishing procedures, क्योंकि वो easily adapt हो जा रहा है. Disadvantage क्या रहता है? There is a noticeable shifting that could be present. अगर आप कुछ ना कुछ गलती करते हो तो उससे acrylic teeth जो है शिफ्ट कर सकते हैं थोड़े बहुत. Air entrapment within the denture base material could be there, अगर आपने proper mixing नहीं की है उसकी मटेरियल की. ओके, पाउडर में जो मोनोमर उसका रेशियो है वो सही नहीं रखा है, या फिर आपने उसको बेंच क्योरिंग का उतना टाइम नहीं दिया, तो देयर कुड बी एयर एंट्रैपमेंट. ओके, देयर कुड बी पोरोसिटीज, पुअर बॉन्डिंग बिटवीन डेंचर एंड टीथ, दैट इज टेक्निक सेंसिटिव. ओके, तो सही स्टेज पे भी उसको डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट, रिपीटेड और सस्टेन कॉन्टैक्ट ऑफ टीथ अदर दैन ड्यूरिंग मैस्टिकेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज़ नोन एज पैराफंक्शन. जब आप नॉर्मल फंक्शन के लिए दांतों को यूज़ नहीं कर रहे हो और उसके अलावा दांत किसी भी रीज़न से कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं पैराफंक्शन. जैसे कि क्लेंचिंग हैबिट्स हो गई, ब्रक्सिज्म हो गया, वो चीज़ें. दे आर रिपीटेड और सस्टेन्ड ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट ऑफ द टीथ दैट कैन बी हार्मफुल टू द टीथ और अदर कंपोनेंट्स ऑफ द मास्टिकेटरी सिस्टम. इन अ डेंचर वेरियर पेशेंट, पैराफंक्शनल हैबिट्स कैन कॉज एडिशनल लोडिंग ऑफ ऑन द डेंचर बेरिंग टिश्यूज़, जिसकी वजह से जो आपका पूरा स्केलेटल जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है और स्केलेटल सिस्टम है, यहाँ पे TMJ वगैरह है, वो सारा डिरेंज हो सकता है. उसमें पेन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, वो सारी दिक्कतें आना शुरू कर देगा. डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज जनरेटेड ड्यूरिंग फंक्शन एंड पैराफंक्शन आर डिफरेंट. फोर्सेज जनरेटेड, अगर हम मैस्टिकेशन की बात करें तो मैस्टिकेशन में ज़्यादातर वर्टिकल फोर्सेज लगती हैं. ड्यूरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड लाइट ड्यूरेशन होता है, फोर्स लगी छोड़ दिया, लगी छोड़ दिया, और ज़्यादातर डायरेक्शनल होता है, मतलब दिन के टाइम पे ज़्यादा होता है. ठीक है, लेकिन पैराफंक्शनल हैबिट्स होती हैं वो फ्रीक्वेंटली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी लगाएगा पेशेंट और वर्टिकल फोर्सेस भी लगाएगा. इसमें प्रोलॉन्ग्ड पॉसिबली एक्सेसिव बोथ डायरेक्शनल एंड नॉक्टर्नल फोर्सेस जो है पेशेंट लगाता है. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टाइम्स एन इंडिविजुअल swallows पर डे वाइल अवेक इज हाउ मच. देखो, डिफरेंट बुक्स अलग अलग हमारे पास स्टेटमेंट देती है, तो इन्होंने दो स्टेटमेंट सही करी हैं, 600 एंड 800.
600 हमारी जो एक जेफरी पी ओकेसन 6th एडिशन है उसके हिसाब से सही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स एंड ऑक्लूजल डिस्क्रिपेंसीज, ये किताब का नाम है। तो इसमें इसके हिसाब से 600 बार हम swallow करते हैं, ठीक है। द स्टडी हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट swallowing साइकिल्स अकर 590 टाइम्स ड्यूरिंग 24 आवर पीरियड। 590 में से 146 साइकिल्स ड्यूरिंग ईटिंग होती हैं, 394 साइकिल्स ड्यूरिंग मील एंड बिटवीन आपकी अवेक एंड स्लीप साइकिल्स होती हैं, ठीक है। 394 तब तक जब तक आप कॉन्शियस हो, और जब आप सो गए हो तब 50 साइकिल्स ड्यूरिंग स्लीप मिनिमम होती है। मतलब स्लीप में भी आप swallow करते ही करते हैं। देयर इज़ अ swallowing साइकिल इन स्लीप एज वेल, ओके। और एक और किताब है जैसे कि गैनोंग 16th एडिशन, ये कहता है कि 600 swallowing करता है बंदा, जिसमें से 200 जो है वो ईटिंग और ड्रिंकिंग के टाइम करेगा, और 350 जो है वो अवेक विदाउट फूड, एंड 50 वाइल स्लीपिंग, ओके। ये डिफरेंट swallowing का पैटर्न था। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉइस्चर एक्टिवेटेड एडिसिव। साइनोएक्राइलेट जो होता है वो एक मॉइस्चर एक्टिवेटेड एडिसिव होता है। 4 ऑप्शन दिए थे, साइनोएक्राइलेट, मिथैक्राइलेट, बिस्कमा। इनमें से साइनोएक्राइलेट जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज मॉइस्चर एक्टिवेटेड रेजिन एंड इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर फॉर इनिशिएशन ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर फॉर इनिशिएशन ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियली अवेलेबल साइनोएक्राइलेट बेस्ड instant glue and currently available cyanoacrylate orthodontic adhesive smart bond that is just Tenko Gothenburg Sweden is that ये मतलब कंपनी का नाम था उसकी, is that the bonding material contains silica gel to make it more viscous. Next, tissue conditioning materials are what? Tissue conditioning materials ना ही आपके इलास्टोमर होते हैं, ना ही इलास्टोपॉलीमर, ना ही इम्प्रेशन प्लास्टर। Tissue conditioning materials are polymers, simple polymers. They contain polymer that is polyethyl methacrylate. पॉलीइथाइल मेथैक्रेलेट PEMA होता है इन द टिश्यू कंडीशनर्स एंड अ लिक्विड दैट कंटेन्स अ पॉलीमर ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। लिक्विड में पॉलीमर होता है ऑफ इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट एंड इट इज़ एन एरोमेटिक एस्टर। नेक्स्ट, अ कंप्लीट डेंचर पेशेंट इज हैविंग डिफिकल्टी इन स्वेलिंग ड्यू टू व्हाट? डिफिकल्टी इन स्वेलिंग क्यों होगा? जब आपके एक्सटेंशन ज़्यादा होंगे, डेंचर के एक्सटेंशन ज़्यादा होंगे, और देर इज़ इंटरऑक्लूजल स्पेस डिस्क्रिपेंसी। मतलब अगर इंटरऑक्लूजल स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, VDO माइनस VDR बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे आपकी swallowing डिफिकल्टी होगी, क्योंकि टंग को आपको जगह ही नहीं मिलेगी मूव करने के लिए, ठीक है। डिफिकल्टी इन swallowing विद द कंप्लीट डेंचर अकर्स व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड वर्टिकल डायमेंशन एंड डिक्रीज्ड इंटरऑक्लूजल स्पेस। नेक्स्ट, मोस्ट रीसेंट टाइप ऑफ डेंचर एडहेसिव इज व्हाट? मोस्ट रीसेंट टाइप ऑफ डेंचर एडहेसिव इज सॉल्ट्स ऑफ गोंट्रेस, ठीक है। मोस्ट रीसेंट टाइप ऑफ डेंचर एडहेसिव इज सॉल्ट्स ऑफ गोंट्रेस। Various denture adhesives are vegetable gums. Early possesses very little to cohesive strength. Vegetable gum based जो adhesive थे उनकी little cohesive strength होती है, ठीक है, and they wash out readily and they are also known to cause allergy. इसको replace करने के लिए, gum based adhesive को replace करने के लिए हमारे पास synthetic salts of contrase यूज़ किए गए। synthetic salts of contrase AIMS 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। They display good ionic adherence. ओके, द परफॉर्मेंस ऑफ द गम बेस्ड मटीरियल्स इज शॉर्ट लिव्ड एंड अनसेटिस्फैक्टरली, इसीलिए हम सिंथेटिक सॉल्ट्स ऑफ गोंट्रेज जो है वो यूज़ करते हैं आजकल, उनको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिसेंट टाइप ऑफ डेंचर एडहेसिव इज सॉल्ट्स ऑफ गोंट्रेज, GONTREZ, ओके। नेक्स्ट, a patient reports to the dentist with the joint involvement, obscure pain, discomfort, clicking sounds, and patient is a complete denture wearer. The denture should be checked for what? The denture should be checked for increased vertical dimension. Okay? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है जब आपका वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ओक्लूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, ऑब्सक्योर पेन, डिस्कम्फर्ट और क्लिकिंग साउंड सुनाई देना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, ओवरलोड ऑफ अ डेंचर बेस इज कॉज्ड बाय व्हाट? ओवरलोड ऑफ अ डेंचर बेस इट इज कॉज्ड बाय स्मॉल बेसिस, ठीक है। कंप्लीट डेंचर बेस की एक्सटेंशन जो होती है विद इन द मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल लिमिट होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो इट विल लीड टू रिड्यूसिंग ऑफ द ऑक्लूजल लोड पर यूनिट एरिया ऑफ द म्यूकोसा। अगर बहुत ज़्यादा छोटा होगा डेंचर तो इट विल लीड टू रिडक्शन इन द ऑक्लूजल लोड पर यूनिट एरिया। ओवरऑल बराबर फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। डेंचर बेसिस ओवरलोड कैन बी मिनिमाइज्ड बाय बेसिस एंड स्मॉल टीथ, छोटे दांत यूज़ करके, और बेस को एज आप जितना टिश्यू हो उसके कवर तक फैला के आप पूरे एरिया में एक यूनिफॉर्म फोर्स फैला सकते हैं, ठीक है। सो कंप्लीट डेंचर बेस एक्सटेंशन विद इन द मॉर्फोलॉजिक एंड फंक्शनल लिमिट्स बट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट शुड बी डन, ठीक है। ओवरलोड जो होता है वो स्मॉल बेसिस की वजह से होता है, तो आपको मैक्सिमम सरफेस जितना कवर हो सकता है वो करना है, लेकिन विद इन द फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल लिमिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिकेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर ऑन द बेसल सीट बाय डेंचर बेसिस मे बी बेस्ट सीन बाय व्हाट?
Indication of excessive pressure on the basal seat by denture bases. It may be best seen by, the answer is best by the correct use of pressure indicator paste. देखो प्रेशर इंडिकेटर पेस्ट जब आप यूज़ करते हो बिलो द डेंचर तो प्रेशर डायरेक्ट हो जाता है टीथ के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में. अब सारा पेस्ट डिस्प्लेस होगा तो जहाँ पे हमारा स्पिक्यूल वगैरह निकला हुआ है वहाँ पे पेस्ट जो है वो दिखाई नहीं देगा आपको जब आप डेंचर को हटाओगे. ठीक है, सो दैट एरिया यू नीड टू रिलीव. ठीक है, उस चीज़ को आपको रिलीव करना है विद द राउंड बर और डेंचर बेस रिलीव हो जाएगा और पेशेंट को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. नेक्स्ट, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ जनरलाइज सोरनेस ओवर द एंटायर मैंडिबुलर रिज. जनरलाइज सोरनेस है ओवर द एंटायर मैंडिबुलर रिज. दिस इज प्रोबेबली ड्यू टू व्हाट? It is probably due to excessive vertical dimension. It is probably due to excessive vertical dimension. Generalized soreness may be attributed to various factors like excessive vertical dimension of the occlusion and nutrition और hormonal problem से भी generalize हमारे पास ये soreness हो सकती है पूरे mandibular denture के ऊपर. लेकिन mainly हमारे पास excessive vertical dimension या फिर over extended denture की वजह से ये चीज़ें होती हैं. लेकिन over extended denture से भी ज़्यादा अगर जनरलाइज देखो ओवर एक्सटेंडेड वाली होगी पीछे वाला जो सर्कस वगैरह उसमें ज़्यादातर दिक्कत देती है. ठीक है, अगर पूरे मुंह में जनरलाइज जा रही है तो इट इज़ एक्सेसिव वर्टिकल डायमेंशन. यू हैव टू चेक. एक्सेसिव वर्टिकल डायमेंशन नहीं है, ये चीज़ स्टेटमेंट में दे रखी है, देन यू विल चूज द नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेंचर पेशेंट? कौन सा पेशेंट बेस्ट डेंचर पेशेंट होता है? आंसर इज फिलोसफिकल पेशेंट इज द बेस्ट डेंचर पेशेंट. ठीक है, हाउस ने क्लासिफिकेशन करी थी, 4 तरह के डेंचर पेशेंट बताए थे उसने अकॉर्डिंग टू मेंटल एट्रीब्यूट्स. नाउ फिलोसफिकल आइडियल एटीट्यूड होता है इट्स एक्सेप्टिंग द जजमेंट ऑफ डेंटिस्ट विदाउट अ क्वेश्चन. वो डेंटिस्ट से पूछने आया है कि आप क्या करना चाहते हैं. ठीक है, और वो गाइडेंस लेने को तैयार है. ठीक है, ही विल एक्सेप्ट योर जजमेंट. सेकंड आते हैं दैट इज इनडिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट. दे आर लिटिल कंसर्न फॉर देयर ओरल हेल्थ एंड सीक्स ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ देयर फैमिलीज. वो खुद नहीं आए, अपनी मर्जी से नहीं आए, वो अपनी फैमिली की वजह से आए. दे रिक्वायर सम टाइम टू अंडरस्टैंड दैट देयर एटीट्यूड इज़ वेरी डिस्करेजिंग टू द डेंचर. और उनको डेंचर पहनने के लिए खुद का एटीट्यूड बचाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा. ठीक है, मन बदलना पड़ेगा. तीसरे आते हैं क्रिटिकल पेशेंट्स या एग्जैक्टिंग पेशेंट्स. उनने पहले सीडी बनवाई होती है. ठीक है, पहली सीडी में उनको दिक्कतें आ रही होती है. ठीक है, तो उनके दिमाग में मेडिकल कंसल्टेशन हमेशा करवानी चाहिए उनकी कि दिक्कतें क्यों आ रही हैं, किस रीज़न की वजह से आ रही हैं. क्या डायबिटीज़ है पेशेंट को, क्या थायराइडिज्म है, क्या आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ कोई और है, उसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही है, वो चीज़ें रिमूव करके या उन चीज़ों को रिजॉल्व करके ही आपको डेंचर स्टार्ट करना चाहिए. नहीं तो पुरानी सीडी की दिक्कतें ही उसी सीडी में ठीक करो. ठीक है, फोर्थ आता है स्केप्टिकल पेशेंट या हिस्टेरिकल पेशेंट. ये प्रीवियसली उनको बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट हुआ होता है या फिर उनका पहले के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते, वो हर चीज़ का डाउट करते हैं उसके बाद. They will doubt everything. These are patients with poor oral health with resolved ridges and other unfavorable conditions. Okay. Questions about post-denture insertion. Treatment of choice for palatal hyperplasia occurring due to denture irritation is what? देखो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आप देते हो पैलेटल हाइपरप्लेशिया के लिए सुप्रा पेरियोस्टल एक्सीजन. जितना भी हाइपरप्लेशिया होगा उसको आप सुप्रा पेरियोस्टली एक्सरसाइज करके बाहर निकाल देते हो. अर्ली ट्रीटमेंट फॉर पैपिलरी हाइपरप्लेशिया इंक्लूड्स प्रोस्थेसिस एडजस्टमेंट, tissue conditioning and proper oral hygiene. Advanced treatments consist of supraperiosteal excision. There is no need to excise full thickness of the palatal tissue. This technique includes removal of only the inflamed mucosa. सिर्फ inflamed tissue को ही हम रिमूव करते हैं with electrosurgical loops, laser ablation, sharp dissection या demabrasion brushes. Demabrasion brushes है and cryotherapy. ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे कि आप उस सॉफ्ट टिश्यू के हिस्से को बाहर निकाल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, इंडिकेशन फॉर रीलाइनिंग ऑफ कंप्लीट डेंचर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट व्हाट? इंडिकेशंस फॉर रीलाइनिंग. देखो इंडिकेशन में अगर आपका डेंचर जो है वो 3 से 6 महीने के बाद ही थोड़ा सा ढीला हो गया, जैसे डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट में हो जाता है. ठीक है, या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ के पेशेंट में हो जाता है तो वहाँ पे आप रीलाइन करेंगे. पेशेंट हु कैन नॉट अफोर्ड न्यू डेंचर, वहाँ पे आप रीलाइन करेंगे. जब तक सेंट्रिक रिलेशन बना पड़ा है, जब तक सेंट्रिक रिलेशन बहुत ज़्यादा डिरेंज नहीं कर जाता, जब तक TMJ की दिक्कतें नहीं आ रही, तब तक आप रीलाइन कर सकते हैं उसको. ठीक है, व्हेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डेंचर इज हैविंग मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स कैन कॉज फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस टू पेशेंट. पेशेंट मेंटली उसका विचार नहीं कर पा रहा है कि इतना मैं दोबारा कर पाऊंगा. ठीक है, तो आप जो है वो रीलाइन कर देंगे. बट सॉफ्ट टिश्यू का अब्यूज़ अगर प्रेजेंट है तो आप रीलाइन नहीं करेंगे. ओके, देयर आर फ्यू इंडिकेशंस फॉर रीलाइनिंग एंड रीबेसिंग. फर्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स. न्यू डेंचर कॉस्ट आर अनफेवरेबल. Physical or mental state of the patient is chronically ill, geriatric patient and medically compromised individuals. वहाँ पे आप रीलाइनिंग रीबेसिंग करेंगे. कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ रहती है? एक्सेसिव रिजॉर्प्शन ऑफ द एल्वियोलर रिज अगर होगी तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, यू विल नॉट रीलाइन इट. हाईली इन्फ्लेम्ड या अब्यूज सॉफ्ट टिश्यूज है तो यू विल नॉट रीलाइन इट.
ओके। पुअर अनएक्सेप्टेबल एस्थेटिक्स है, ठीक है, पुअर अनएक्सेप्टेबल एस्थेटिक्स है तो आप रिलाइन नहीं करेंगे। टीएमजे प्रॉब्लम से रिलाइनिंग नहीं होगी। अनसेटिस्फैक्ट्री जॉ रिलेशन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ओरिएंटेशन या फिर जॉ रिलेशन ढंग से नहीं है तो आप रिलाइन नहीं करेंगे। सीवियर ऑसियस अंडरकट्स विच रिक्वायर सर्जिकल करेक्शन इज देयर तो आप रिलाइन नहीं करेंगे। सीवियर स्पीच प्रॉब्लम्स अगर प्रेजेंट है तो रिलाइनिंग नहीं होगी। Okay. Next, a reliner for complete denture is contraindicated when what? A reliner for complete denture is contraindicated when the centric occlusion and the centric relation do not coincide. ठीक है, रिलाइनर आप तब नहीं देते जब सेंट्रिक ऑक्लूजन और सेंट्रिक रिलेशन कोइंसाइड नहीं करता। ये सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा से। ओके, नेक्स्ट, द मोस्ट सक्सेसफुल मटेरियल्स फॉर सॉफ्ट लाइनर एप्लीकेशन हैव बीन व्हाट? द मोस्ट सक्सेसफुल मटेरियल्स फॉर सॉफ्ट लाइनर एप्लीकेशंस हैव बीन सिलिकॉन रबर्स। ठीक है, सॉफ्ट लाइनर्स आर द डेंचर लाइनिंग मटेरियल्स दैट हेल्प इन कंडीशनिंग द ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यूज। इन शॉर्ट, अ सॉफ्ट लाइनर एक्ट एज अ कुशन और शॉक अब्जॉर्बर बिटवीन द हार्ड पैलेट, between the hard plastic base of denture and the oral tissues. ठीक है, most commonly used soft liners are polymers, that is polyethyl methacrylate (PEMA) with excessive plasticizers, and excessive silicone soft liners have हीट एक्टिवेटेड सिलिकॉन भी होते हैं हमारे पास। मतलब ये सारी चीज जो भी हमने बात की अभी, इन सब में एक प्रॉपर्टी होती है, ये धीरे धीरे आपका जो म्यूकोसा उसको स्टिफ कर देते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो सिलिकॉन सॉफ्ट लाइनर्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे वल्कनाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, दे शो रूम टेम्परेचर वल्कनाइजेशन। नेक्स्ट, रिजॉर्प्शन ऑफ मैंडिबल इन द ओल्ड एजेस विच। Next, what is the pattern of resorption of mandible in old age? Answer is centrifugal. The consequence of ridge resorption are apparent loss of the sulcus width and depth of displacement of the muscle attachments closer to the crest of the ridge, loss of vertical dimension, loss of occlusion, reduction in the lower facial height, anterior rotation of the mandible, and changes in the intra-alveolar ridge relationship after progression of ridge resorption of the mandible. ठीक है, which is essentially centripetal in maxilla and centrifugal in mandible. जो पैटर्न होता है वो सेंट्रीपिटल होता है इन मैक्सिला एंड सेंट्रीफ्यूगल होता है इन द मैंडिबल। नेक्स्ट, पैल्पेशन ऑफ द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बायलेटरली एंड व्हाट? ब्लैंक दिया उसके आगे। द पैल्पेशन ऑफ मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बायलेटरली एंड साइमल्टेनियसली। अब दोनों साइड से साइमल्टेनियसली उसको पैल्पेट कर दो। पैल्पेशन ऑफ द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन शुड बी डन बायलेटरली। ओके, masseter and the temporal muscles, they are palpated extraorally, bilaterally, while the patient clenches. Okay. Next, the continuous band of the muscle constituting buccinator is what? The continuous band of muscles constituting buccinator is the pharyngeal tubercle of occipital bone. ठीक है, कौन सा होता है? pharyngeal tubercle of the occipital bone. Muscles of the lips and cheeks, they are interlaced and interconnected. Muscles of the lips and cheeks are interlaced and interconnected such that the action of one is accompanied by the activity of all. इस तरह से कि एक्शन ऑफ वन इज अकम्पनीड बाय एक्टिविटी ऑफ ऑल। ठीक है, सभी की एक्टिविटी होती है तब एक मसल का एक्शन जो है पूरा होता है। दे टेंड टू एक्ट एज वन यूनिट। वन सच यूनिट इज buccinator mechanism. Fibers of orbicularis oris connect with the fibers of buccinator, which in turn insert into the pterygomandibular raphe just behind the dental arches. ठीक है, fibers of orbicularis oris connect with the fibers of buccinator, which in turn insert into the pterygomandibular raphe just behind the dental arches. Fibers of the buccinator mechanism here interweave with the fibers of superior constrictor. buccinator mechanism के जो fibers हैं वो interweave कर जाते हैं with the fibers of superior constrictor, and they continue posteriorly and medially to anchor at the pharyngeal tubercle of the first cervical vertebra. Next, palatal papillary hyperplasia is best treated by what? Palatal papillary hyperplasia, it is best treated by cryosurgery. ठीक है, इन papillary hyperplasia or denture stomatitis or chronic atrophic candidiasis, surgical management includes elimination of deep crypts. This is preferably done by cryosurgery. Next, dehydration is common concern in elderly edentulous patients because of what? ठीक है, डिहाइड्रेशन क्यों हो जाती है एल्डरली पेशेंट में? क्योंकि उनको थर्स्ट का पता ही नहीं चलता। ठीक है, देयर इज रिड्यूस्ड एबिलिटी टू सेंस व्हाट इज इनसाइड द माउथ। तो डिहाइड्रेशन का पता ही नहीं चलता पेशेंट को, उसका मुंह सूख रहा है, वो उतना ध्यान ही नहीं दे पाता उतने में। एज वी एज द बॉडी फ्लूइड रिजर्व बिकम स्मॉलर, ability to conserve water is reduced, and thirst sense becomes less acute. These problems are compounded by chronic illness such as diabetes and dementia, and by the use of certain medications as well. ठीक है, next, masticatory forces generated by a complete denture processes is about how much? Masticatory forces जो आपकी complete denture processes की वजह से generate होती है, that is ranging from 13 to 16 pounds, 13 से 16 पाउंड के बीच में होती है।
मैस्टिकेटरी लोड्स नेचुरल टीथ में हमने पीछे भी बात की थी 44 पाउंड तक स्टार्ट होती है, ठीक है, दैट इज़ 20 kgs की फोर्स लगाते हैं नेचुरल टीथ। कंप्लीट डेंचर जो हम बनाते हैं, जो हम फैब्रिकेट करते हैं आर्टिफिशियल, वो जो फोर्स लगाते हैं दैट इज़ फ्रॉम 13 to 16 पाउंड्स, दैट इज 6 to 8 kgs की फोर्स लगाता है वो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट क्लिनिकल रीमाउंटिंग प्रोसीजर? फॉल्स अबाउट क्लिनिकल रीमाउंटिंग प्रोसीजर, इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टू डायग्नोस अ कास्ट फॉर रीबेसिंग। क्लिनिकल रीमाउंटिंग प्रोसीजर इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टू डायग्नोस अ कास्ट फॉर रीबेसिंग। रीमाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि हम दोबारा से माउंट कर रहे हैं आर्टिकुलेटर पे। रीमाउंटिंग इज अ मेथड टू यूज टू रिलेट द रेस्टोरेशंस ऑन द आर्टिकुलेटर फॉर एनालिसिस and or to assist in the development of plane of occlusion or equilibrium for reshaping, ठीक है। Lap remounting is preferred to clinical remounting because of the following inaccuracies in the clinical remounting. Clinical remounting में आपका shifting of the denture हो सकता है, eccentric closure of the mandible हो सकता है, ठीक है, इसीलिए lab remounting जो है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है। Time dislocation, पेशेंट कैन नॉट रिमेन इन द सेम पोजीशन फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए आप आर्टिकुलेटर पे उसको माउंट करते हो दोनों कास्ट को, और उसके रिलेशन को भी माउंट करते हो कि पेशेंट कैसे मिला रहा है दांतों को, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड। द पर्पस ऑफ clinical remounting is to correct for the fact that adjusted dentures or adjusted dental bases seat more accurately than record bases and to accommodate more errors made during and making of the secondary relationship records, ठीक है। सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर्स आर प्रेफर्ड एंड रिक्वायर्ड फॉर दीज प्रोसीजर्स। रीमाउंटिंग प्रोसीजर्स के लिए आप सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है। जो पर्पस है क्लिनिकल रिमाउंटिंग का, दैट इज टू करेक्ट फॉर द फैक्ट दैट एडजस्टेड डेंचर बेसिस सीट मोर एक्यूरेटली इन द रिकॉर्डेड बेसिस एंड टू अकोमोडेट फॉर मोर एरर्स, ठीक है, ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ सेंट्रिक रिलेशनशिप रिकॉर्ड्स। मतलब जो हम सेंट्रिक रिलेशन के रिकॉर्ड ले रहे हैं, तो जो एडजस्टेड डेंचर बेस होता है वो ज़्यादा एरर्स को एकोमोडेट कर सकता है, ज़्यादा एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर सकता है बेसिस को, ठीक है, इसलिए करवाते हैं। नेक्स्ट, इन पेशेंट्स रिक्वायरिंग लिंगुअल फ्रेनेक्टोमी व्हाट शुड बी सीन? इन पेशेंट्स रिक्वायरिंग अ लिंगुअल फ्रेनेक्टोमी द डेंचर शुड बी मेड बिफोर द सर्जरी इज परफॉर्म, ठीक है। आपको फ्रेनम वाले हिस्से को बचाने के लिए या फिर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द ओरल फ्लूइड्स, फ्रॉम द जीभ के बार बार हिस्सा, ठीक है, तो उनसे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए जो डेंचर होता है वो प्री फैब्रिकेट करना होता है। इन पेशेंट्स रिक्वायरिंग लिंगुअल फ्रेनेक्टोमी, ठीक है, लिंगुअल फ्रेनेक्टोमी जीभ के नीचे का, द डेंचर शुड बी मेड बिफोर द सर्जरी is performed. This is done to ensure that the denture acts as a stent to prevent further relapse of the frenum. Denture एक stent की तरह भी काम कर रहा है कि अब फ्रेनम उस एरिया में ग्रो नहीं करेगा दोबारा से, ठीक है, और एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह भी काम कर रहा है, ओके। नेक्स्ट, पेपिलोमेटोसिस मस्ट ऑफन सीन बीनीथ द डेंचर इज बेस्ट ट्रीटेड बाय व्हाट? पेपिलोमेटोसिस जो होता है वो डेंचर के नीचे वाला जो होता है, तो उसको ट्रीट करने का पहला रूल क्या रहता है? इसमें आप क्या करोगे कि पेशेंट को डेंचर पहनने से मना करोगे, क्योंकि डेंचर की वजह से वो पेपिलोमेटोसिस हो रहा है, ठीक है। फॉर मोर एडवांस्ड एंड लार्ज लीजन्स एक्सिजन ऑफ द हाइपरप्लास्टिक टिश्यू मे बी रिक्वायर्ड बिफोर फैब्रिकेटिंग अ न्यू डेंचर। सिवियर सर्जिकल मेथड्स हैव बीन यूज्ड फॉर दिस एक्सिजन। पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस ब्लेड इंसिजन भी कर सकते हैं, हमें इलेक्ट्रो सर्जरी कर सकते हैं, क्यूरेटाज लेजर सर्जरी कर सकते हैं, क्रायो सर्जरी कर सकते हैं। लीजन्स रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रो सर्जरी दे रिक्वायर एन एवरेज ऑफ 30 to 33 days ऑफ टू हील, ठीक है। जो अपने इलेक्ट्रो सर्जरी से रिमूव किया है उसको आपको 30 से 33 दिन लगते हैं हील करने के लिए, वेयर एज द लीजन्स रिमूव्ड बाय द सर्जिकल क्यूरेटाज रिक्वायर अराउंड 21 to 23 days फॉर हीलिंग। नेक्स्ट, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ सोर थ्रोट आफ्टर 24 hours ऑफ डेंचर डिलीवरी। मोस्ट लाइकली द कॉज इज व्हाट? देखो, सोर थ्रोट है आफ्टर 24 hours ऑफ डेंचर डिलीवरी, तो उसमें मैंडिबुलर डेंचर में ज़्यादातर दिक्कत आती है। एक्सटेंडेड मैंडिबुलर बॉर्डर्स होंगे तो उसमें सोर थ्रोट और स्वेलोइंग में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी पेशेंट को। सोरनेस ऑन स्वेलोइंग और द सोर थ्रोट इज मेनली ड्यू टू द मैंडिबुलर डेंचर बॉर्डर causing an over-extension or pressure in the regions of retromylohyoid curtain. Next, after a few days of insertion, patient complains of inability to chew food. The tooth most likely to cause lateral balancing interference in the anterior guidance occlusal scheme is what? It is second molar. देखो स्टेटमेंट सुनिए। The cusp tip to fossa angle generally gets shallower. जो cusp tip to fossa angle होता है वो जनरली शैलो होता जाता है, बिकॉज फर्स्ट प्रीमोलर टू सेकेंड मोलर हमारे पास जो है वो एक एंगल चेंज करता है, ठीक है। सेकेंड मोलर इज फार्दर अवे फ्रॉम द एंटीरियर टूथ, okay, so it affects the lateral guidance and closer to the fulcrum. It is closer to the fulcrum and it's also affecting the lateral guidance. Due to this,
The orientation of the occlusal plane, second molar tooth is the most susceptible to lateral balancing interference in anterior guidance. Second molar जो है वो lateral balancing जब हम करवाते हैं, जब हम anterior guidance चेक कर रहे होते हैं तो उसमें interference देता है. तो हल्का सा सेकंड मोलर को एडजस्ट करोगे तो आगे और पीछे के दांत आपके ठीक आ जाएंगे. लेकिन आपको दोनों मैच करके रखने, ठीक है. आपको एंटीरियर गाइडेंस भी मैच करनी है और साइड टू साइड लेटरल गाइडेंस भी मैच करके रखनी है. ओके. नेक्स्ट, शंटिंग इफेक्ट अकर्स इन कंप्लीट डेंचर व्हेन. शंटिंग इफेक्ट अकर्स इफ द ऑक्लूजल प्लेन इज लोअर इन मोलर एज वेल एज इन इंसाइजल एरिया. अगर ऑक्लूजल प्लेन जो है वो लोअर है इन द मोलर एज वेल एज इंसाइजल एरिया तो शंटिंग प्लेन जो है या फिर शंटिंग इफेक्ट जो है वो अकर करता है. द ऑक्लूजल प्लेन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द डेंचर. Ideally, the best stability is obtained when the occlusal plane is parallel to and anatomically oriented to the ridges. If the occlusal plane is tipped, there will be shunting effect and loss of stability. There will be a shunting effect and loss of stability of the denture. If the occlusal plane is lower in the molar area, there will be a tendency for the upper denture to be displaced posteriorly. अगर हमारा occlusal plane lower है in the molar area, तो वहाँ पर tendency रहेगी for the upper denture to be displaced posteriorly. क्योंकि पीछे वाले दांत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है. एंड द लोअर डेंचर एंटीरियरली, जब पीछे वाले दांत नीचे वाले को पहले दबा देंगे तो आगे वाले उठ जाएंगे, उसकी वजह से आगे वाले दांत को वो प्रेशर लगा देगा. इफ द ऑक्लूजल प्लेन इज लोअर इन द इंसाइजर एरिया द शंटिंग इफेक्ट विल बी ऑपोजिट. अगर आगे आपने एंगल ज़्यादा लगा दी तो आगे वाले दांत पहले मिल जाएंगे, तो पीछे वाले दांत जिसे आगे वाले पहले मिल गए तो वो फोर्स लगाएंगे और पीछे से वो खुल जाएगा. समझ रहे हो? दैट इज़ द शंटिंग. मतलब ये मान लो ये चीज़ है, तो अगर यहाँ पे फोर्स लग रही तो ये पीछे से उठ जा रहा है, अगर यहाँ पे फोर्स लग रही तो आगे से उठ जा रहा है. दिस इज नोन एज द शंटिंग इफेक्ट. ओके. नेक्स्ट, मैंडिबुलर रिज रिजॉर्प्शन अकर्स कॉजेज व्हाट. मैंडिबुलर रिज रिजॉर्प्शन इट कॉजेज द वाइडनिंग ऑफ द पोस्टीरियर रिज. मैंडिबुलर रिज रिजॉर्प्शन यूजुअली वाइडनिंग ऑफ द पोस्टीरियर रिज करवा देती है. इन मैक्सिला द चेंजेस अकर इवनली अराउंड द डेंटल आर्च. ठीक है, मैक्सिला में चेंजेस जो होते हैं वो इवनली अकर करते हैं अराउंड द डेंटल आर्च, बट मोर ऑन द बक्कल एंड द लेबियल साइड दैन ऑन द पैलेटल साइड. इन मैंडिबल द रिजॉर्प्शन प्रोसेस is more in the labiolingual and vertical directions. Unlike in the maxilla, the speed of the bone loss in mandible is different in different parts of the jaw. Distal parts of the residual ridge, they disappear faster due to resorption than the anterior parts of the mandible. Okay. Next, ideal site for implant placement in a completely edentulous patient is what? Ideal site पूछी हुई है, 4 ऑप्शन दिए. 4 ऑप्शन में से इंट्राफोरामिनल रीजन जो होता है, इंट्राफोरामिनल रीजन इट इज द आइडियल साइट फॉर इम्प्लांट प्लेसमेंट. आइडियल साइट फॉर इम्प्लांट प्लेसमेंट इन अ कंप्लीटली edentulous mandible इज व्हाट. 4 ऑप्शन दिए, इसमें से इंटरफोरामिनल रीजन, इंटर बोल रहा है, इंट्रा नहीं, इंटरफोरामिनल रीजन जो है वहाँ पे आप इम्प्लांट प्लेस करते हैं. इंटरफोरामिनल रीजन इट इज़ कंसिडर्ड सेफ फॉर इम्प्लांट प्लेसमेंट. दिस फॉर्म्स अ बेसिस फॉर न्यूरोवैस्कुलर बेडिंग एंड हेल्प्स टू रिटेन द प्रोस्थेसिस. नेक्स्ट, ओवर एक्सटेंशन ऑफ द कंप्लीट डेंचर फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड विदाउट एडजस्टमेंट में कॉज व्हाट. ओवर एक्सटेंशन आपका कंप्लीट डेंचर का प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए पेशेंट ने पहना हुआ है, उससे इपुलिस फिसरेटम हो जाता है. Epulis fissuratum, it is a mucosal hyperplasia that results from chronic low-grade trauma induced by a denture and moreover by the denture flange, जो overextended borders है. Epulis fissuratum, it is analogous to acanthoma fissuratum of the skin. Okay, मतलब उसका opposite हो जाता है. Epulis fissuratum जो है वो analogous होता है to the acanthoma fissuratum of the skin. Next, which of the following areas of the oral cavity are affected by inflammatory papillary hyperplasia? पैलेट जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है बाय इन्फ्लामेटरी पैपिलरी हाइपरप्लेजिया. मोस्ट कॉमन रीजन्स ऑफ इन्फ्लामेटरी पैपिलरी हाइपरप्लेजिया इज द पैलेट एज द डेंचर बेस इज कवर्ड एट दैट रीजन. नेक्स्ट, अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ लूजनेस ऑफ डेंचर्स विद इन 2 to 4 hours ऑफ इंसेशन. 2 से 4 घंटे के बीच में वो लूज होना शुरू हो गया, ऐसा पेशेंट खुद बता रहा है. द मोस्ट लाइकली द कॉज विल बी व्हाट. देखो, पेशेंट जो है वो ऑक्लूजन ढंग से नहीं मिला पा रहा होगा. देयर इज अ डिफ्लेक्टिव ऑक्लूजन जिसकी वजह से पेशेंट जो है बार बार डेंचर को लूज रिपोर्ट करता है. द डेंचर मे बिकम लूज बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्टिव ऑक्लूजन कॉन्टैक्ट्स causing continuous shifting of the tissues in the basal seat area. The errors should be corrected after making new interocclusal records. The errors should be corrected after making new interocclusal records. Next, a patient complains of frequent maxillary denture fracture. कह रहा है कि maxillary denture बहुत जल्दी फ्रैक्चर कर जाता है. On evaluation, it was seen that जो आर्टिकुलेटर पे हमने रखा हुआ है तो ऑक्लूजल डिस्क्रिपेंसी हमें दिखाई दे रही है आर्टिकुलेटर के ऊपर. व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ दिस डिस्क्रिपेंसी? देयर कुड बी लैक ऑफ म्यूकोजल रेजिलियंसी इन द हार्ड पैलेट. हार्ड पैलेट में म्यूकोजा इतना रेजिलियंट ही नहीं है कि वो उस पूरे डेंचर को
बियर कर पाए, उसकी पूरी फोर्सेस को बियर कर पाए, वो फ्रीक्वेंट हमारे पास कॉज रहता है कि पेशेंट नया नया डेंचर बनवा रहा है मैक्सिला और फिर वो टूट जा रहा है। द लैक ऑफ द म्यूकोजल रेजिलियंसी इन स्पेशली मिड लाइन ऑफ द हार्ड पैलेट मेक्स इट एज अ फल्क्रम, दस लीडिंग टू फ्रैक्चर ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल में भी हो सकता है, मैक्सिला में भी हो सकता है, दोनों में टूट सकता है, बट लीडिंग टू फ्रैक्चर ऑफ द मैंडिबुलर डेंचर मोर। Patients using a single maxillary denture against their natural mandibular teeth commonly face a problem of the midline fracture in their routine acrylic dentures. Various conditions that encourage the fracture include heavy anterior occlusal contact, deep labial frenal notches, especially when in conjunction with the midline diastema, and high occlusal forces due to strong mandibular elevator musculature. हाई ऑक्लूजल फोर्सेज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मैंडिबुलर एलिवेटर मस्कुलेचर, मतलब फोर्सेज ज़्यादा लग रही हैं, बैलेंसिंग नहीं है, टिश्यूज उतना स्टेबल नहीं कर पा रहे, तो दांत डेंचर जो है दो हिस्सों में टूट जाएगा। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ रिजॉर्प्शन ऑफ मैक्सिलरी रिज इज व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ रिजॉर्प्शन ऑफ मैक्सिलरी रिज इज अपवर्ड्स एंड लिंगुअली। ओके, डायरेक्शन ऑफ रिजॉर्प्शन इज upward and lingually. The maxilla resorbs upward and inward to become more progressively smaller because of the direction and inclination of the roots of the teeth and the alveolar process. Due to this type of resorption, the maxilla becomes smaller in dimension with time. ठीक है, इस resorption की वजह से maxilla छोटा होता जाता है with time. In mandible, the resorption occurs lingually and inferiorly. ठीक है, inferiorly occur करता है in the anterior region एंड बकली अकर करता है इन द पोस्टीरियर रीजन, जिसकी वजह से फाइनली जो रिजल्ट आता है उसमें मैंडिबुलर आर्च विद टाइम जो है वाइड होती जाती है। मैंडिबुलर आर्च आपकी वाइड होती दिखती रहेगी और आपकी मैक्सिलरी आर्च स्मॉल होती दिखती रहेगी, कंस्ट्रिक्ट होती दिखती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेंचर स्टोमेटाइटिस आर ट्रू एक्सेप्ट व्हाट? डेंचर स्टोमेटाइटिस इज यूजुअली not associated with sore mouth, true statement. It is usually associated with wearing of the denture at night, true statement. It is more common in diabetics, a true statement. लेकिन जो चौथा ऑप्शन है दैट इज इट इज़ मोर कॉमन इन मेन, वो गलत स्टेटमेंट है हमारे पास। द करेक्ट स्टेटमेंट इज दैट द इंसिडेंस ऑफ डेंचर स्टोमेटाइटिस इज हायर अमंग वुमेन एंड इज फ्रीक्वेंटली इन द मैक्सिलरी आर्च रादर देन द मैंडिबुलर आर्च। ओके,